Good. अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, स्टार्ट कर दें? Okay, assalamu alaikum everyone. Let's start today's topic, which is compensation and benefits in HR. So, Mansoor sir, should we start? Yes, sure, we start right now. मैं बस Okay. हमने So, मैंने से सेटिंग करनी है. Today's topic is compensation and benefits. And today I have invited another HR specialist who has a grip on compensation and benefits. He's going to join us in 10 minutes. Before we move forward, let's discuss about what do you understand by compensation and benefits. In HR, this is very, very important that we should know the importance of these two things. So I'll share my screen, and in between when the speaker is going to join, I'm going to stop there. So I'm going to share my screen. So compensation and benefits. Compensation and benefit a global and broader as a global and broader perspective. एक हम लोकली देखते हैं, दूसरा हम इसको ग्लोबली देखते हैं कि ग्लोबली कंपनसेशन बेनिफिट्स पे कैसे काम होता है, एंड देन वी विल सी दैट लोकली हम इसके ऊपर कैसे काम कर रहे हैं. What is compensation? Compensation and benefits are important part of an employee's total reward package. Taking a global perspective requires understanding differences in pay, benefits, time off, and retirement plans across countries and cultures. So compensation is not only which you get during your service, it is what you get after your service time is complete, after your retirement, which is called a retirement plan, and then what other benefits along with your job, कौन-कौन से आपको benefits मिल रहे होते हैं. So these are the things which we discuss in this topic. So let's start with what is agenda of compensation and benefit function, how it works, and what is the requirement of compensation and benefits. So it starts with financial motivation, compensation strategies, market intelligence, compensation policies, HR auditing, HR reporting, competitiveness, and budgeting. So employee benefits, क्या-क्या benefits एक employee को हो सकते हैं? So when you talk about employee benefits, we'll start with social security. How secure an employee feels when he or she is working with an organization, not only in the premises, but outside the premises as well. What are the perks and bonuses an employee can get during his services or after his services? Employee allowances, what are the allowances? Medical allowances, fuel allowances. So whatever the allowances are available, that comes under allowances. And then pay raise. Pay raise again, what is the process of pay raise, whether it is performance based or it is annual raise, or whatever the process any organization is following. Then health insurance,
paid vacations, meal breaks, achievement awards. These are all employee benefits, and these are all important for any organization to have in their HR practices, so which will help them to develop a good bonding between the employee and the organization, and which will help the organization to retain the employee for a longer period of time. Now look at this with another perspective. Compensations क्या है? Compensation में क्या क्या चीजें आ सकती है? Profit share is compensation. There are few organizations where जहाँ पे shares जो है वो उनको profit को share किया जाता है या shares sale किए जाते हैं. So which is called it is a business model in which both the employee and the employer share the profit. Then market orientation है, and then bonus payments है. Bonus payments आप किस तरह से कर रहे हैं? Whether it is monetary form में है, yearly bonuses हैं, performance based bonuses हैं. So these are again it also comes under compensation. And then we have global programs and evaluations. Globally क्या हम उसको उसमें reach करते हैं जो level required है for compensations. Then what comes in benefits? Benefits में आता है flexible working hour. Flexible working hour is a benefit. Okay, I'll stop my screen over here. We have a guest today. So Miss Uzma is going to join us. She's joining us. Uzma has a good experience of HR, and the topic compensation and benefit is close to her heart as well. So when Mansoor Saab can introduce Uzma to our participants today, let her join first. Yeah, I think there is some problem. I have made Uzma co-host of this session, and she has joined. But her audio system is not being connected with Zoom. Let me ask her again. Okay, sure. I've told her to rejoin, so हम continue करते हैं. Sure. I think. Assalamu alaikum, Uzma. Have you joined?
मंसूर साहब आप देखिएगा अगर वो ज्वाइन करिए, आई विल स्टार्ट द सेशन। बिल्कुल उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और उनका ऑडियो सिस्टम भी आ गया, लेकिन अभी उन्होंने अब खुद को अनम्यूट करना है। एक सेकंड मैं कर रही हूँ। आई एम अनएबल टू सी अ चॉइस हियर, एक मिनट। I have made you the co-host of this session, so you can share your presentation to. Okay. एक मिनट बिलाल, बस देखो ना, करके घर जाके मुझे बताओ, मैं एक मिनट यहाँ पे हो नहीं रहा। हेलो। Yes, जी please. You're उस्मा, audible to all हाँ of जी, us. सॉरी, I was on a call and I wanted to unmute and then I don't know, this is I think your updated version, वो उसमें अपडेट में चला गया है, but I'm just here। so we सबसे can hear पहले you। अस्सलाम। हाँ जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू जॉइन इन एज क्विकली एज आई कैन बिकॉज आई एम श्योर आपका वो स्टार्ट हो चुका है। तो आई थिंक हमारा आज कंपनसेशन एंड बेनिफिट का है। क्या मैं स्टार्ट करूं अंबर, या अभी आप लोगों का कोई इज देयर एनी? Yes, sure, Uzma. I was waiting for you so that you should start and then we'll continue. Acha, sure. So I'll just quickly give in my 2 cents on compensation and benefit. Basically, the introduction I have is I've worked in a banking sector, I've worked in telecom companies, and I'm also a consultant. I was also a consultant to unknown companies. तो मैं काफ़ी seniority position पे आप कह सकते हैं कि almost head level तक काम कर चुकी हूँ। तो compensation and benefit को मुझे काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक इट्स अ बर्ड आई व्यू, जो कि वो टॉप से भी आपने देखा है, लेकिन जब आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे होते हैं तो तब भी मैंने इसकी काफ़ी चीज़ें नोटिस की और देखी, जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो आई डोंट नो व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द कॉन्वर्सेशन ओवर हेयर। क्या हमें मॉड्यूल्स डिस्कस करने हैं या फिर एक कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट जो कि किसी भी कंपनी के लिए नेसेसरी है, स्पेशली आजकल के टाइम में? अगर वो है तो मैं एक जस्ट बर्ड आई व्यू दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम कम है। Yes, I would like you to give a bird eye view and then if we have any questions regarding that तो हम आपको उसमें थोड़ा involve कर लेंगे। श्योर ठीक है श्योर उस्मा? श्योर। Thank you. ठीक है। देखिए, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट जो है, सबसे पहले तो अगर आपको किसी कंपनी में काम करना है, ठीक है, और स्पेशली अगर आप सीनियरिटी लेवल पे, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उसके लिए नॉट सिर्फ कि आप एक अपना जो कंपनी में ऑलरेडी एक कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट चल रहा है उसको देखें, लेकिन इसके अलावा आपको मार्केट सर्वे कराना चाहिए, आपको उस इंडस्ट्री का एक सर्वे लेना चाहिए कि प्रिवेलिंग वहाँ पे क्या है। आप कह सकते हैं कि सैलरीज क्या हैं और कॉम्प एंड बेनिफिट के क्या क्या मॉड्यूल्स हैं जो कि वहाँ पे यूज किए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके पास ना सिर्फ, एंड ऑलवेज मेक श्योर कि जब आप कोई भी कंपैरिजन करें, इंडस्ट्रियल कंपैरिजन करें, लोग अपने बड़ी बड़ी कंपनी से करा रहे होते हैं, कोई मैकेंजी से करा रहा होता है, लेकिन ऑब्वियसली सबके बजट्स हैं। अगर आप छोटे लेवल पे भी करा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि कंपनी जिनके साथ आप कर रहे हैं, एक तो ये कि नंबर ऑफ पीपल, द एम्प्लॉयज यू हैव, वो दूसरी कंपनी में भी सिमिलर होना चाहिए, और इसके अलावा आपका जो स्पेशली प्रोडक्ट हैं और वो भी सिमिलर होने चाहिए, ताकि एक मोनोटोनस किस्म का ना आपका एक सर्वे हो सके। तो सबसे पहले वो सर्वे करवाइए ताकि आपकी सैलरीज डिफाइन हो सकेंगे जो मार्केट में दी जाती हैं। उससे ये होता है कि कॉम्प एंड बेन का बेनिफिट रिक्रूटमेंट को भी फिर बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारे एक तो आपकी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, एक आपके एक्सेप्टेड एम्प्लॉयज हैं, एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयज हैं। तो वो एम्प्लॉयज को आप बता सकते हैं कि अगर वो कंप्लेन करते हैं कि आपकी सैलरीज कम हैं और दोनों तरफ ना कि बहुत कम पैकेज दिया जा रहा है, बेनिफिट नहीं है, ये सारे, तो आप ये सर्वे निकाल के उसकी फाइंडिंग्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि दिस इज नॉट आवर कंपनी दैट इज ओनली गिविंग यू समथिंग, कि हमारे बजट कम है, या एचआर जो है वो हमेशा से ही एक इवल रोल कर रहा है। ये कंपनी के अंदर ही ये सब चीजें ठीक है उस तरह से हैं, तो वो आपको एक बेनिफिट करता है। तो ऑलवेज गो फॉर दैट एंड ट्राई टू नो दैट। उसके अलावा देखें, अदर बेनिफिट्स भी बहुत मैटर करते हैं। मॉनिटरी तो आपके हैं ही, आप वो भी दें, सारी चीजें करें, लेकिन व्हाट रियली मैटर्स इज कि आप जो जैसे होता है कि जिम की होती हैं और इसके अलावा फैसिलिटीज होती हैं, जो कि कुछ हर कंपनी का अपना बजट होता है, आई कांट रियली पिन डाउन कि क्या है, लेकिन आप उनको वो भी दें ताकि जब आप कॉम्प एंड बेन ऑफर करें, ठीक है, अभी मैं रिक्रूटमेंट के परस्पेक्टिव से आपको बता रही हूँ कि अगर आप ऑफर करें, क्योंकि आजकल का सबसे ज्यादा इशू ये चल रहा है कि एम्प्लॉय रिटेन नहीं हो पा रहे हैं, नए एम्प्लॉयज को आप ला नहीं पा रहे हैं क्योंकि कॉम्प एंड बेन उस तरह का नहीं है, तो हमेशा सेल इट आउट जो कि आपके
बाकी बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल कल्चर बहुत मैटर करता है कंपनी का। ऑलवेज सेल आउट कि आपका एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, एक आपका रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट, एंड मेक श्योर दैट यू नो यू आर giving that environment back to employees as well. उसके अलावा जो आपके बाकी फोटेज हैं उसको भी सेल आउट करें, क्योंकि हर चीज मॉनिटरी आजकल नहीं हो सकती है कॉम्प एंड बेन में। इतना टाइट चीजें हैं कि नहीं होता, लेकिन बोनसेस को रखें, ठीक है। बोनसेस एक बहुत अट्रैक्टिव चीज होती है, तो चाहे वो ईद बोनस हो आपका, चाहे परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस हो, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि स्ट्रेच करें अपने इसमें से बजट में से, और हमेशा बोनसेस रखें। और अगर ये बोनस नहीं है तो उसको और ज्यादा पिन डाउन कर दें, और जो परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज हैं उनकी तरफ ये ले आएं, ताकि लोगों में ये एक हो कि आप बोनस का वर्ड यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपने कर दिया। कोशिश ये करें सबको मिले, ऑब्वियसली एवरीबडी इज डिजर्विंग वन, लेकिन अगर आपकी कंपनी नहीं करती है तो जो टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज हैं, ताकि वो एक लॉट बेंचमार्क हो सके बाकी एम्प्लॉयज के लिए कि कॉम्प एंड बेन में जिसने ऑफर किया है उसको बोनस दिया जा रहा है। सो हैविंग सेड दैट ऑन द रिक्रूटमेंट पार्ट एंड एवरीथिंग, इसके अलावा अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को बहुत फेयर बनाएं। उस सिस्टम के मुताबिक आपकी जो ग्रेडिंग है वो चाहे वो बेल कर्व है, चाहे आप 360 डिग्रीज कर रहे हैं, लेकिन वो सारा इतना फेयर होना चाहिए कि कॉमन मैन उसमें भी रिफ्लेक्ट हो। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं जी आपने उसको 6 मंथ के बाद दे दिया, आपने उसको 7 मंथ के बाद दे दिया, तो ये भी एक एजिटेशन होती है। जब एम्प्लॉयज में पता हो कि आपने कॉम्प एंड को फेयर रखा हुआ है, इक्वलाइज बेसिस पे रखा हुआ है, तो वो भी इतना अनरेस्ट क्रिएट नहीं करता। लेकिन जब आप उनको बताएंगे कि आपका फेयर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है और वो कॉम्प एंड बेन उसके मुताबिक दिया जा रहा है, तो काफी ये चीजें जो होती हैं ये आपके बाईपास करती हैं एम्प्लॉय के दरमियान अनरेस्ट को, या वो छोड़ के चले जाते हैं उन चीजों को। प्लस आई थिंक बीइंग एन एचआर आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप अपने एम्प्लॉयज अपने जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम उनको ये चीज बताते रहें। अगेन हेयर द मार्केट सर्वे विल वर्क, शो देम कि कितनी ज्यादा मार्केट के अंदर हाई सैलरीज दी जा रही हैं, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल आईटी में सिस्टम कंपनीज थी, आपको पता ही होगा, उसने आके तहलका मचा दिया था, उन्होंने सारे पाउच कर लिए थे टॉप ऑफ द कंपनीज के जो एम्प्लॉयज थे, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कॉम्प एंड बेन इतना हाई ऑफर किया था कि उस ऑफर करने की वजह से जितने भी आईटी के मेन रिसोर्सेज थे वो सिस्टम कंपनी में चले गए थे। और आपको पता ही है कि सिस्टम को वर्ल्ड बेस्ट कंपनी का भी अवार्ड दिया गया है। आई वाज रीडिंग इट इन आई थिंक प्रो पाकिस्तान, वहाँ कहीं पे ये न्यूज आई थी जो कि 3-4 दिन पहले की है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाई एंड रिसोर्सेज ने उनको कहाँ तक पहुंचा दिया। सो हैविंग सेड दैट, अगर इस तरह की कंपनी आपकी कर सकती है तो अपने सीईओज को बताएं कि जब आप अच्छा रिसोर्स नहीं लेकर आते हैं और मार्केट वाले उसको पाउच करके ले जाते हैं बाकी कंपनीज, तो कितना ज्यादा ये होता है। तो जो मुझे पता है कि जब मैं कंपनीज में थी तो सीईओ कितना ज्यादा आप पे प्रेशराइज करते थे। दिस इज ऑलवेज समथिंग दैट दे विल नॉट लेट इट गो। वो हमेशा इसको कट डाउन करने की कोशिश करते हैं, इवन दो इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ अ गुड टैलेंट। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ हर वक्त निगोशिएटिव टर्म्स में रहें, ताकि वो एम्प्लॉयज को अच्छे बेनिफिट्स दें, और स्पेशली जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, आपका अच्छा टैलेंट है, उसको जाने ना दें। इसके अलावा कॉम्प एंड बेन के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि जो प्रैक्टिसेस हैं, न्यू प्रैक्टिसेस हैं, जो कि नई चीजें आ रही हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ वीक्स मनाए जाते हैं, ये चीजें हैं। ऑब्वियसली इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कॉम्पनसेशन को, बेनिफिट को इक्वलाइज करने की, या बाकी चीजों से ऐसी चीजें देने की कि आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे। तो ये चीजें जरूर लेकर आएं। और प्लस अपने कॉम्प एंड बेन को बहुत फेयर रखें। जो बंदा आ रहा है, आपका कंपनी ज्वाइन कर रहा है, अगर आपके टैक्सेस हैं, अगर आप उसको बाइफिकेट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आप उसको हम लोग अक्सर नेट इनकम दिखा रहे होते हैं, हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर होता है उसमें नेट इनकम दिखाते हैं, फिर उसके बाद जो आपका हाउस अलाउंस है उसको दिखाते हैं, फ्यूल अलाउंस होता है, सब कुछ दिखा रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आपके एम्प्लॉय को पता हो कि कॉम्प एंड बेन का जो आप पार्ट दे रहे हैं वो सारा कंफ्यूजिंग ना हो, उसको सारी डिटेल्स पता हो, क्योंकि जब वो ज्वाइन कर लेते हैं दे विल हैव द क्वेश्चन। सो is there I think Amber, do you want me to continue or do we have to ask for a question and answer session, ताकि मैं अगर किसी क्वेश्चंस है तो उसके मुताबिक भी जवाब दे सकूं। if you have anything more to say, please say, and then उसके बाद हम question answers कर लेंगे अच्छा, थोड़े से। sure. So how long I have so I can go according to the You time? can have 10 minutes. अच्छा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स की और भी करना चाहूँगी, अगर हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा सा और करें तो इफ़ यू सी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आई डोंट नो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं इस वक्त, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है जो सफ़र कर रही है इस वक्त में वो आईटी इंडस्ट्री है। सबसे ज़्यादा कॉम्पनसेशन बेनिफिट का जो एक लगा हुआ है, एक आप ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इसके अलावा रिटेंशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, वो आईटी इंडस्ट्री का है। तो मैंने आईटी इंडस्ट्री में आपको कहा, मैंने कंसल्टेंसी की थी आईटी इंडस्ट्री के साथ, उनका मेन इशू ही ये था कि वो सैलरीज को बनाना चाहते थे। अच्छा, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं जो कि आईटी इंडस्ट्री में ये अब कहते हैं और ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग की तरफ जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा कंपनी जो डिफरेंट हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे वो उनके साथ काम कर रहे हैं, रिमोट वर्किंग कर रहे हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कंपनीज़ की। तो वो कहते हैं कि जब आप हमें पे करें तो हमें डॉलर में पे करें, ठीक है। और क्योंकि डॉलर जो है वो बेसिकली उसका फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा है और इतना ऊपर नीचे जाता है कि वो कहते हैं कि हमारे लिए इजी हो जाता है उसको करने का। बट इट्स अ वेरी आई वुड से सेटबैक फॉर अ कंपनी अगर वो डॉलर में पे करना स्टार्ट करे, स्पेशली अगर वो मीडियम लेवल के बजट की कंपनी है, क्योंकि डॉलर की यहाँ पे इतना ज्यादा हायर रेट्स जा रहे हैं कि जो कंपनी का एचआर बजट है या जो कॉम्प एंड बेन का बजट है वो इंतहाई आप कह सकते हैं कि इट विल गो रियली लाइक अप एंड डाउन इफ यू आर गोइंग टू पे एवरी एम्प्लॉय इन द डॉलर्स। और अगर आप 2-3 को पे कर रहे हो बाकी को नहीं पे कर रहे हैं, अगेन दैट पॉइंट अनरेस्ट जो होता है वो आ जाता है। तो इसको कैसे टैकल किया जाए, इसको आप काइंडली जो आप बना रहे हैं, अगेन मार्केट प्रैक्टिस को जहन में रखें, इंडस्ट्री नॉर्म्स को जहन में रखें, जो दिया जा रहा है उस तक लाने की कोशिश करें। अगर नहीं ला रहे हैं तो फिर आप अपने रिमोट आवर्स ज्यादा कर दें, ठीक है। क्वालिटी टाइम उनसे मांगें कि फॉर एग्जांपल इफ द एम्प्लॉय इज गोइंग टू वर्क फ्रॉम ऑफिस तो उसके एम्प्लॉय हाफ कर दें या 1 डे कर दें, 3 डेज आप रिमोट वर्किंग पे चले जाएं, ताकि उनके लिए जो फ्यूल है वो कट डाउन हो। तो एवरीथिंग दैट यू कैन कट ऑफ, और उसको फिर उसको हाईलाइट भी उसी तरह करें। जो इस तरह के आप बेनिफिट्स देते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता अगर आप एम्प्लॉय को ये ना बता सकें कि कॉम्प एंड बेन में हम ये तो आपको ऑफर ना कर सके, लेकिन ये वाली चीजें हम आपको करें। तो ऑलवेज हाईलाइट दैट वी आर डूइंग दिस you can say not a favor I would say, but something that you're going out of your comfort zone level just to cater an employee. तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं समझती हूँ स्पेशली आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत वो है। उससे ये होता है कि जब वो रिमोट वर्किंग करते हैं तो डेफिनेटली द इट्स शुडंट बी एट द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग योर रिजल्ट, लेकिन वो उनके लिए रिमोट वर्किंग की वजह से कुछ असाइनमेंट्स करना ईजी हो जाती है, फ्रीलांसिंग थोड़ा सा करना ईजी हो जाती है, तो दे विल हैव मे बी टू सोर्स ऑफ इनकम। तो हमें इन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जहां पे आपके कहीं भी आप ये समझ सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, तो उनको इन चीजों पे इंकरेज करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर आवर एम्प्लॉइज एंड वी शुड नो दैट इट्स हार्ड टाइम फॉर एवरीबडी। तो आप कॉम्प एंड बेन में साइड पे एचआर बीइंग एन एचआर फैसिलिटेटर इन चीजों को भी जहन में रखें। इसके अलावा अगेन व्हाट एल्स यू कैन टॉक अबाउट इज दैट कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट किस तरह से फॉर द फीमेल्स किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि डिस्पैरिटी आती है हमारे पाकिस्तान में इतनी नहीं है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे है अभी भी। जो आपकी सीनियर पोजीशंस है वहाँ पे कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट फॉर द फीमेल्स आपका कम है। अगर आप एक कंपनी है जो कि डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं, आप एक कंपनी है जो कि फीमेल एम्पावरमेंट में बिलीव कर रहे हैं, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट अगेन आई वुड से ऑब्वियसली मैटरनिटी और ये सारी चीजें तो लोग देते ही हैं। इसके अलावा ये आपका है जो डिफरेंट हाउ वुड यू से दैट जो खवातीन मैटरनिटी से वापस आती हैं, जो आपके डे केयर्स होते हैं, उन डे केयर्स पे शायद आपकी वन टाइम कॉस्ट होगी, लेकिन वो उसका पार्ट होगा क्योंकि वो जो मेड लेकर आएंगी और वो जो बाकी चीजें लेकर आएंगे उनसे उनकी सैलरीज पे और उनकी चीजों के ऊपर इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो कोई ऐसे बेनिफिट साइड पे रखिए, जरूर करिए जो कि आपके एम्प्लॉयज को एक ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बेनिफिट दें, और उनको बेनिफिट इस तरह से दें कि उनको कॉम्पनसेशन बेनिफिट में उसका असर नजर आए। अगर आप फॉर एग्जांपल जिम दे रहे हैं तो दैट इज एन एक्स्ट्रा एज जो कि उनकी हेल्थ के लिए ठीक है, लेकिन शायद उनकी पॉकेट के लिए इतना वो ना हो, मे बी हर एम्प्लॉय नहीं जाता। लेकिन फीमेल में मोस्टली अगर आपकी मैरिड हैं एंड दे नीड चाइल्ड केयर हेल्प, तो आप ये जरूर इंट्रोड्यूस करें। और इन इन चीजों के जरिए आपकी कंपनी का एक अच्छा इमेज भी जाएगा, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड एम्प्लॉयर। प्लस जो कॉम्पनसेशन बेनिफिट पे जो असरात हैं वो भी क्लियर नजर आएंगे। और
उसके अलावा कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि एलिजिबल हैं, उनके लिए कोई एजुकेशन की अगर वो करना चाहते हैं, डिग्रीज करना चाहते हैं, तो उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। और ये वो सारे वेज हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो कि आजकल की कंपनी में कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट ज़्यादा ना देने की वजह से जो आपका इतना रिटेंशन रेट है, उसमें आप बाकी चीज़ें क्या कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं जो कि आपके कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट को बेनिफिट करें। तो ये वो सारी बातें हैं, कुछ जो मुझे समझ में आई आजकल की थोड़ी जो स्टडीज हैं, जो रिसर्च करने के बाद मैंने देखा कंपनीज क्या कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए और देखने के लिए। सम एम्प्लॉयज से दैट कि आप उनको 2 मंथ सैलरीज का कह दें, अगर वो छोड़कर जाएं, या 3 मंथ सैलरीज का कह दें, ऑल्दो इट विल हेल्प, एंड कंपनी को एक जो रिसोर्स ढूंढने में जो उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, एक छोड़ के जाता है वो होती है, तो जब कोई एम्प्लॉय 2 या 3 सैलरीज देकर जाता है, इवन तो वो हेल्प करता है, बट मोर देन दैट आप अपनी पॉलिसीज को इतना फ्रेंडली रखें, अपने कल्चर को इतना फ्रेंडली रखें, अपने कॉम्पनसेशन बेनिफिट को भी इतना मेंटेन रखने की कोशिश करें कि इस तरह की चीजें ना ही हो, तो बेहतर है। बट अगेन, इफ इट इज अ रिक्वायरमेंट बीइंग एन एचआर, यू हैव टू टेक सम स्ट्रिक्ट डिसीजन एज वेल। तो एम्प्लॉय के ऊपर थोड़ा सा अपने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनाएं कि अगर वो नोटिस पीरियड दिए बगैर जा रहे हैं, आपको सिग्निफिकेंट नहीं नोटिस पीरियड मिल रहा जहाँ पे आपका एक रिसोर्स आए और आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाए, तो उसमें आप जो है ये लेकर आ सकते हैं, कॉम्प एंड बेन का उसका पार्ट बनाइए कि इवन दो यू आर विलिंग टू गिव, बट यू नो इफ द कंपनी यू आर लीविंग इट और आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसे करके, तो दो दो सैलरीज जो भी आपकी मिनिमम होती हैं, द पर्सन नीड्स टू पे एंड देन दे नीड टू लीव। तो ये कुछ ये टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम कर सकते हैं। आई थिंक आई हैव टेकन माय टाइम ऑफ 10 minutes, तो अगर स्टिल यू हैव क्वेश्चंस, एनीबडी इज विलिंग टू आस्क फॉर इट, then they're more Thank than you, Usma, welcome. for the detailed intro to compensation and benefits. I would request that the participants, if they have any questions, so can you please ask, because we have a time and she has 10 more minutes, so we can have few question answer sessions, then we continue with our session. Anyone, if have any questions, otherwise we can say thank you to Usma. जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम मैडम, सलाम। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पब्लिक सेक्टर के हवाले से नॉलेज है तो काइंडली शेयर कीजिएगा। सॉरी, पब्लिक सेक्टर में थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दें, पब्लिक सेक्टर के हवाले से आप क्या चीज जानना चाह रहे हैं? पब्लिक सेक्टर के अंदर ये कंपनसेशन एंड बेनिफिट का अगर थोड़ा बहुत है, इस हवाले से थोड़ा बहुत नॉलेज है कि किस तरह से वहाँ पे कंपनसेशन या कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो काइंडली ज़रा बता दीजिएगा अगर आपका इस बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। जी सॉरी, आई डिडंट गेट योर नेम, आपका नाम, सॉरी। अली अली हसन, अली जी हसन। जी अली, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। पब्लिक सेक्टर शायद मेरा इतना स्ट्रॉन्ग फोटे नहीं है, लेकिन अगेन जो हम न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, जो देखते रहते हैं बीइंग एन एचआर, तो मैंने देखा है कि इस दफ़ा उनकी सैलरीज में काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिया है हमारे लास्ट प्रेसिडेंट साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने। इसके अलावा जो आपकी पेंशन है, उस पेंशन को भी 10% या रेज दिया गया है। लेकिन फिर मैंने अगेन ये न्यूज़ पढ़ी थी कि क्योंकि बजट इतने ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से आइदर दे आर गोइंग टू गिव द सैलरी इंक्रीज, जो मेरे ख्याल से अच्छी खासी सैलरी इंक्रीज है। आई थिंक इट वाज अराउंड 20-25% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मे बी मोर, जो कि आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इस बजट में दिया गया है। उसके अलावा अगर तो ये बात सच है, तो फिर आपकी जो पेंशन है अगर वो उसको भी दिया गया है, तो ये दो चीजें हैं जो कि मुझे पता चली हैं कि क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया था, तो उन्होंने उसके मुताबिक गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज सैलरीज जो हैं वो इंक्रीज कर दी हैं। और अदर बेनिफिट्स का मैं नहीं क्योंकि पब्लिक सेक्टर इज इज अ वेरी वास्ट सेक्टर। अब इसके हवाले से कि किस वाले सेक्शन में कौन सा वाली बेनिफिट्स अभी दिए जा रहे हैं, उसकी मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है। मे बी नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग मुझे दोबारा बुलाएंगे, तो आई विल गो इनटू द डिटेल्स, आई रीड इट आउट, आई आस्क माय फ्रेंड्स, तो मैं आपको जरूर इसके ऊपर भी और बताऊंगी। लेकिन ये अभी मैंने एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है जो कि पब्लिक सेक्टर के बारे में सुना है। और अगर तो आप ये चाह रहे हैं कि उसका कंपैरिजन प्राइवेट सेक्टर के साथ किया जाए, कोई स्पेसिफिक अगर टॉपिक है, तो अंबर से आप प्लीज कांटेक्ट करिएगा। डेफिनेटली आई विल कम अप विद द प्रिपरेशन और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू। Any other questions? Anybody have any other question? जी। Okay. हाँ। Thank you so much, Uzma, for such a insightful
session and a short talk on compensation and benefit, and such a relevant talk because you are from the industry and you know that how important it is to have a relevance whenever we are providing the compensation and benefits to our employees. So relevance is very important. So Uzma, your insight is very helpful for our participants, and thank you so much for joining us. We are surely going to take you on board for our other sessions as well. And Mansoor Saab, if you have anything for Uzma. Thank you, Amber, for your kind words. Ji Mansoor Saab, I think Mansoor Saab is on mute. Thank you, Amber, for the kind words. I really Thank you, appreciate it. Uzma. And more than welcome. Whenever you have a topic, you're more than welcome. Ji Thank Mansoor you. Saab. Thank you, Very much. Uzma. Actually, there was a connectivity problem at my side. That was I was disconnected. Now I joined again. आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव वे में बताया ग्लोबल कंपनसेशन जो हमने आज में डिस्कस करना है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, उस पर्सपेक्टिव में भी आपने बताया कि जैसे सिस्टम की एग्जांपल दी और बाकी और भी आईटी कंपनीज हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर रही हैं पाकिस्तान में रहते हुए भी ना, लोगों को रिटेन करने के लिए। तो बहुत डिटेल से आपने डिस्कस कर लिया, एक एरियल व्यू हमें दिया जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई हमारी समझने के लिए, और जो आगे हम इस टॉपिक को लेके चलेंगे तो वो हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। जी Thank you very much. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द काइंड वर्ड्स। थैंक यू Amber and thank you Mansoor Saab. Thank you so much, Uzma. Thank you. Okay, now we'll go to the next slide. I'll just share my screen. Okay. So Uzma, just explain, give us a overview of compensation and benefits and how it works. So let's move on theoretically. अब इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. What is compensation and benefits in HRM? Compensation and benefits in HRM refers to the salary, monetary, and as well as non-monetary privileges provided to employees at the workplace by the organization. It is a primary tool of human resource managers to bring out the best potential of the employees in their work. So this is one of the way in which we can compensation benefits के through हम engage कर सकते हैं अपने employees को. जैसे अभी उस्मा ने बताया कि हर वक्त हम salary के through तो engage नहीं कर सकते. Sometimes we have to think out of the box that what else we can provide to our employees so that it comes under this compensations and benefits, and which help us to retain the employee. Objective of compensation and benefits: control the inaccruing costs of the organization, to enhance the overall motivation of an employee, to improve the comprehensive company's ranking on social platforms in terms of employee motivation and satisfaction, long-term retentions of the employee. Payment must meet the employee's overall needs and expectations in return for the work done. So compensation and benefits के objectives क्या हैं? क्यों हम करना चाहते हैं? Inaccruing cost है उसकी organization की, उसको manage करने के लिए to enhance the overall motivation कि आपकी जो employees हैं motivated रहेंगे, so they are going to work in a right direction for the business development and to improve comprehensive companies ranking. कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज जो है वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है. आपको कहीं से भी जब कोई जॉब ऑफर आती है या कोई जॉब पोस्टिंग आती है, आप सबसे पहले गूगल करते हैं और देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन किधर है, इसकी क्या रैंकिंग है और इसके एम्प्लॉइज खुश हैं या नहीं खुश, वो सब चीजें आपको सोशल मीडिया पे अवेलेबल है. So if you are providing good benefits and compensations and benefits, it would be on the social media as well. It will help you to engage good employees for your organization. Long-term retention of the employees के अच्छे आप benefits देंगे तो retention आपकी increase होएगी, लोग ज़्यादा अरसे के लिए आपकी organization के साथ रहेंगे. Payment must meet the employee overall need. उसका मतलब ये कि जब हम bonuses जो दे रहे हैं, वो bonuses जो होते हैं वो relevant होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपके जो जिस तरह से हमारे हालात हैं इसमें आप 5,000 रुपये अगर बोनस देंगे तो वो बोनस तो नहीं है. So bonus should meet the criteria. Global compensation trends क्या हैं? North America compensation growth of 3 to 5%, focus on performance-based pay and benefit customization. Performance-based है. अगर उनको बोनसेस भी दिए जा रहे हैं या ग्रोथ दी जा रही है, कंपनसेशन
3 to 5% पे में भी जो रेज है वो बिकॉज ऑफ दी परफॉर्मेंस। उधर जो नॉर्थ अमेरिका का एक ट्रेंड है दैट इज परफॉर्मेंस। वेस्टर्न यूरोप में क्या है, जी स्लो कंपनसेशन ग्रोथ, बिलो इन्फ्लेशन, फोकस ऑन वर्क लाइफ बैलेंस एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये आपने सुना होगा कि यूरोप में बहुत चीजें चल रही है कि रिटायरमेंट प्लान्स के ऊपर बहुत ज्यादा इनकी स्ट्राइक्स भी हो रही हैं पिछले 2-3 साल से, एंड वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत काम करते हैं। दे आर मोर इनटू फ्लेक्सिबल टाइमिंग, वर्क फ्रॉम होम। सो इनका ये ट्रेंड है, दे आर मोर इनटू वेलबींग की तरफ इनका ज्यादा फोकस है। तो ये लोग, इनके लिए कंपनसेशन इज वेलबींग, इट्स ऑन फोकस्ड वर्क है, और वर्क फ्रॉम होम है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, एंड रिटायरमेंट प्लान्स पे काम करें। चाइना क्या कर रहा है, हाई कंपनसेशन ग्रोथ ओवर 10%, फोकस ऑन बोनसेस एंड इक्विटी इंसेंटिव्स फॉर स्किल्ड टैलेंट। जो स्किल्ड टैलेंट है उसके लिए इक्विटी क्या है, जैसे हमने क्वालिटी एंड इक्विटी की बात की थी लास्ट टाइम, तो इक्विटी के ऊपर वो काम करें कि जिसकी जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर दे आर वर्किंग। India and Pakistan में क्या, steady compensation growth of 6 to 8%, focus on pay transparency and merit based promotions। हमारे पास merit based promotions की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन I sometimes don't agree with this। यहाँ पे merit से ज्यादा आपकी जो और बहुत चीजें मैटर करती हैं फॉर प्रमोशन, बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पे परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं होता, मेरिट के ऊपर नहीं होता, वहाँ टाइम के ऊपर होता है कि जितना आपने टाइम उस कंपनी को लगाया है उसके ऊपर आपकी प्रमोशन होती है। लैटिन अमेरिका में वॉलेटाइल कंपनसेशन ग्रोथ, फोकस ऑन रिटेंशन इंसेंटिव्स एंड नॉन कैश बेनिफिट्स। नॉन कैश बेनिफिट्स ये कि उसमें बोनसेस नहीं है, बट अदर बेनिफिट्स, वेलबींग के बेनिफिट्स हैं, maybe some employee dinner, some day plans, जो फैमिली प्लान्स हैं या फैमिली डे आउट्स हैं, इस तरह की प्लानिंग के ऊपर वो ज्यादा काम करे। मिडिल ईस्ट क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कंपनसेशन ग्रोथ फ्यूल्ड बाय ऑयल रेवेन्यू, फोकस ऑन एक्सपेडिट अलाउंसेस एंड टैक्स प्लानिंग। वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि उसको अलाउंसेस कैसे दिए जाए और टैक्स को कैसे प्लान किया जाए। This is what we need to discuss. So let's stop over here. और इस global compensation trend को जरा हम discuss करते हैं, and let me stop sharing the screen, and I would like Mansoor Saab to take the lead if he's here, because he's very good in comparing these global perspectives. So Mansoor Saab, are you available or should we start? और बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो आप मुझे ये बताएं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अमेरिका में क्या ट्रेंड्स चल रहा है और पाकिस्तान में क्या ट्रेंड है, यूरोप में क्या ट्रेंड है। यूरोप में तो पिछले 3-4 साल से ये ट्रेंड चल रहा है कि दे वांट फ्लेक्सिबल टाइमिंग और उनकी ज्यादा फोकस वेलबींग की तरफ है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप हमारे साथ डिस्कस करें। आपका काफी स्ट्रॉन्ग व्यू होता है ऑन डिफरेंट वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्रीज में जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उनके ऊपर। सो लेट्स एवरीबॉडी लेट्स डिस्कस दिस थिंग, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। रीडिंग मटेरियल तो आपको मिल जाएगा, बट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट दैट वी शुड डिस्कस दीज टॉपिक्स हियर। जी मंसूर साहब, लेट्स डिस्कस। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक्चुअली वाकई हम पाकिस्तान में भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है ना। जैसे अभी उस्मा ने भी एक बड़ी पाकिस्तानी आईटी की ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया था, सिस्टम इंटरनेशनल का। तो सिस्टम इंटरनेशनल वो सारी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रही है जो कि ग्लोबली इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, पाकिस्तान का सिनेरियो ये सारा का सारा हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव को, कि हमें पता हो, क्योंकि एक और चीज़ जो बहुत तेज़ी से इवॉल्व हुई है आफ्टर कोविड-19 के रिमोट वर्किंग का कल्चर आ चुका है। प्रोफेशनल जो है, इवन एचआर प्रोफेशनल, एलएनडी प्रोफेशनल, इवन और भी जितने भी प्रोफेशनल हैं पाकिस्तान में रह के रिमोट वर्किंग करते हैं फॉर कंपनीज इन नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, इन अदर कंट्रीज लाइक दैट। तो हमें इस हिसाब से समझना ज़रूरी है ताकि हमें कभी अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हम उस पर एक अच्छी बार्गेन कर सकें, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकें, राइट। तो क्योंकि टैलेंट अट्रैक्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हर रीजन के लिए, और लोग माइग्रेट कर रहे हैं। इवन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ से भी लोगों ने माइग्रेट कर लिया है। वहाँ पे भी इस वक्त यानी एक ब्रेन ड्रेन तो नहीं कह सकते, लेकिन यह कि स्किल वर्कर हैं वो जो हाईली डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे मूव कर चुके हैं ना। जैसे फिनलैंड है, नीदरलैंड है, वहाँ से ऑस्ट्रिया है, तो इस तरह से। तो इस वक्त बड़ा चैलेंज है, और
मैंने खुद भी एक कंपनी में काम किया था, जब कैरियर स्टार्ट किया था, डेट वाज एबट फार्मास्यूटिकल। तो उस कैरियर के स्टार्ट में वहाँ पे एक फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की गई थी, जो कि फैसिलिटी ये थी कि कोई भी एम्प्लॉय जिसका जो बच्चा है वो पढ़ रहा है, और वो उस मैट्रिक करने के बाद जितनी भी उसकी एजुकेशन है, जो भी उसने हायर एजुकेशन लेनी है, वो स्पॉन्सर होगी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अब देखें कितने लोग थे जिनकी जो सिंगल थे, जो मैरिड भी नहीं थे, ठीक है, और जो कि सिंगल थे और उनकी फैमिलीज भी नहीं थी, जिन्होंने एज एंट्री पोजीशन के ऊपर उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया अपनी यंग एज के अंदर, और लेकिन वो भी रिटेन हो गए सिर्फ एक उस बेनिफिट की वजह से। और कई लोगों को जब जाके पता चला, कभी उनको छोड़ना पड़ा या उनको स्विच करना पड़ा किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको पता लगा कि यार ये तो बेनिफिट हमारे किसी काम का नहीं था। लेकिन बहरहाल उस बेनिफिट की वजह से लोग रिटेन हो गए। फैमिली का प्रेशर, बाकी चीज़ों का प्रेशर, पीयर प्रेशर, सब चीज़ें काउंट करती हैं ना इन चीज़ों में। तो हमारा पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, वो तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है इस वक्त फाइनेंशियली। इस वजह से हम अभी इसको किसी रेटिंग में अभी रख नहीं सकते। पब्लिक सेक्टर में तो ये भी फिर भी कंपनसेट कर दिया जाता है कि जी, अभी बहुत से लोग मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, उनको इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से क्या कहते हैं कंपनसेट किया जा रहा है, प्लस उनके इंक्रीमेंट्स भी लग रहे हैं। ठीक है, एडिशनल इंक्रीमेंट जो उनके टेन्योर बेस लगते हैं, यानी ईयरली इंक्रीमेंट, परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट, जो भी है वो लग रहे हैं, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन का कवर भी दिया जा रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ नहीं है। तो ये इस पर्सपेक्टिव में हम बात कर सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर को ये एज है कि उनका वर्कलोड कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा नहीं होता, फास्ट पेस्ड वो नहीं होते एज कम्पेयर टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर के। लेकिन उनके प्रिविलेजेस और जो उनका जो पीस ऑफ माइंड है या कंफर्ट, लेवल ऑफ कंफर्ट है, वो ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो ओवरऑल हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। जिस तरह अभी भी एक चैलेंज है ग्लोबली कि जी फीमेल की कंपनसेशन इक्वल नहीं है। इवन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी ये एक बड़ा चैलेंज चल रहा है कि फीमेल्स जो हैं उनको भी इक्वल कंपनसेशन मिले। और लेकिन अभी ये है चैलेंज, अभी उनको इक्वल कंपनसेशन नहीं मिल रही, और इसके लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई ग्लोबली फीमेल्स को भी ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जो कंपनसेशन है यानी पे में भी वो इक्वल हो ना। तो ये सारे के सारा सिनेरियो है आपके सामने है, और आगे भी हम इसके अंदर बहुत सारे केसेस डिस्कस करेंगे, बहुत सारे कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी और लोकल पर्सपेक्टिव में भी, तो जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा अपने आप को सही जगह पे प्लेस करने के लिए। और अगर आपने बेंचमार्किंग करनी है, कभी भी आपको मौका मिले, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जाना चाह रही है, तो तब भी आपको सपोर्ट मिल जाए यहाँ से। थैंक यू बच्चों अच्छा, सब। जी जी। I wanted to add something, rather ask something. कि जैसे when Ma'am Amber described the Pakistan's compensation that they have presented in this slide, she also said कि she disagrees with it because पाकिस्तान में generally ऐसा नहीं होता, मतलब कहीं कहीं merit based होती होंगी, mostly generally जो हमारा culture it is much different. तो हो सकता है कि जो बाकी countries की भी हैं ये over generalize करके बयान की गई हैं, मतलब it is not their culture. So like is it true कि हम लोगों के कुछ biased से I'll give you opinions the हैं? answer to this, Simal. ऐसा है कि जैसे ये ट्रेंड्स हैं, सो इन ट्रेंड्स को आप ये नहीं कह सकते कि ये पत्थर पे लकीर है या दिस इज हरफ आखिर नहीं है, बट दीज आर द ट्रेंड्स which has been observed. लाइक यूरोप का आपने इंटरनेशनली देखा होगा कि the people they are more into well-being. उनको टाइम की इंपॉर्टेंस है, उनके एक तो वहां पे लाइट का इशू होता है क्योंकि वहां वेदर इस तरह का है, तो उनको डे लाइट चाहिए होती है ज्यादा काम के लिए, और वो विंटर्स में उनके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन है, जो उनकी ओवरऑल जो उनकी जियोग्राफिकल सिचुएशन है उसकी वजह से उनका वो ट्रेंड है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान और इंडिया का एक जनरल परसेप्शन ये दे रहे हैं, जो एक जो एट टाइम्स I don't agree with it, but maybe somebody agrees with this. But मेरा अपना perspective ये है कि जो private organizations हैं उसमें जो merit है उसके ऊपर काम किया जाता है, but in government organization merit वाला criteria ही नहीं है, because वो merit पे नहीं आपको promotion देते, वो time पे देते हैं कि आपके इतने साल हो गए तो you are promoted.
और फिर उसके कुछ उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो परफॉर्मेंस एंड टाइम दोनों को देखते हैं। तो इट डिपेंड्स कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, क्योंकि अगर आप हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इट्स अ मिक्स प्लेट, इट्स नॉट लाइक एवरीवेयर, सब कुछ एक जैसा नहीं है, जिसमें हमारा लॉ एंड ऑर्डर का भी बहुत बड़ा रोल है। सो दीज आर द ट्रेंड्स, यू कांट से कि ये ऐसा ही हो रहा है। तो आई एग्री विद यू कि इट कैन बी अ जनरलाइज्ड टॉक, बट दिस इज हाउ वी परसीव इट। जैसे आप जनरली बात करते हो तो you perceive it like this. Okay, thank you, ma'am. That makes sense. अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा। बेशक जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, वाकई ऐसा ही है कि पाकिस्तान का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है ना। यहाँ पे सिफारिश और भी बहुत सी चीजें, सीनियरिटी भी एंगेज होती है। लेकिन बहरहाल वो भी कोशिश, पब्लिक सेक्टर में भी कोशिश ये की जा रही है कि हम इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर आ जाएं, भले वो दिल से ना कर रहे हो, इम्प्लीमेंट ना कर रहे हो, लेकिन वो जो कोशिश उनकी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनकी थ्योरी यही है कि हम इस तरफ आए। और और मे इसी बी जी इन एमपी सम टाइम ऐसा हो जाए। ऐसा हो जाए ना। देखिए उन्होंने स्पेशल वो स्केल्स भी इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं ना, मैनेजमेंट MP1 MP2, जो कॉन्ट्रैक्ट पे सब लोगों को स्केल्स तो लेके जाते इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं, लेकिन स्केल्स तो देखें हैं, बट उन जी स्केल्स के ऊपर जो आ रहे हैं उनका मेरिट क्वेश्चनेबल है। जी मे जी बी बिल्कुल। उसकी परफॉर्मेंस का क्या, कौन सा वो टूल्स यूज कर रहे हैं फॉर द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, क्या कर रहे हैं वो, ये इसलिए कि उस बंदे ने 10 साल यहाँ पे काम कर लिया इसलिए प्रमोट हो जाएगा। So जी there are so many question marks. So when we are discussing this thing, हम किताब को तो उसरा पढ़ सकते हैं जैसे किताब लिखी हुई है, लेकिन जो चीज है जनरली, because all those who are the participants, they are HR professionals, तो इनको ये सब चीजें पता हैं। We can't say कि जी सब कुछ सही हो रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आपकी जो IT इंडस्ट्री है उसमें कंपटीशन इतना ज्यादा है कि वहां पे ये चीज, वहां मेरिट सामने आ जाता है, बिकॉज आपको कंपटीशन मिल रहा है। बट देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज जहाँ पे आपके पास कंपटीशन नहीं है, वहां पे फिर आप सिर्फ ये देखते हैं कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ईयर्स ऑफ सर्विस है, उसके ऊपर हम बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन पे चले जाते हैं। सो मिक्स चीजें चल रही हैं यहाँ पे। सो लेट्स मूव ऑन। सही। कंपनसेशन कॉम्पिटेटिव बेनिफिट्स में क्या है? फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, allowing employees to work remotely, adjust hours or compress work weeks, retirement plans, watching employees for 41K contributions at high percentages, generous paid time off, providing ample vacation time, sick days and personal days off, health insurance, offering medical, dental and vision insurance with low premium and deductions, and professional development covering costs for conferences, trainings, tuition reimbursement and certification. So my question to you all is that in this slide, which benefit you value the most? So आपने slide देख ली है, ये 5 चीजें हैं। I'm going to stop sharing it now. Everyone please think on it कि इसमें से कौन सा है, because I'm going to ask each one of you and I will ask which one and why. So there are 5 benefits: flexible work arrangements, generous paid time off, health insurance, retirement plans, professional development. Each one of you have to think that which do you think is the best benefit. Okay. मेरी स्क्रीन पे मेरे बाद हैं अफजल अब्बासी. If you are available, Afzal, which do you think is the best? मंसूर साहब, आपके आधे पार्टिसिपेंट सो रहे होते हैं या सिर्फ ऑन करके चले जाते हैं? हैं, बस बीच में पार्टिसिपेट भी करते हैं सब लोग, तो बात भी करते हैं, डिस्कशन भी कर रहे होते हैं। अच्छा, जॉन से हैं, प्लीज वो जरा जी जी डिस्कस कर लें, बिकॉज anyone who wants to participate. Hello, ma'am. How are you? I'm good. According to me, I think so कि retirement plan benefit जो है वो better होता है, because आपकी just आप उसको काम कर रहे होते हो, तो जब आप काम कर रहे हो तो उसके साथ जो benefits आपको मिल रहे हैं आप उसको enjoy तो कर रहे हो, but what about your future? मतलब आप फ्यूचर में तो इतनी, मतलब आपके अंदर इतनी कैपेसिटी और वो सब चीजें खत्म होती जाती हैं, तो आपको जॉब्स मिलने में, कुछ चीजें मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो क्यों ना हम ऐसा बेनिफिट प्लान बनाए जो हमारे मतलब 5 to 6 years अगर एम्प्लॉय सर्व भी कर रहा है और उसके बाद रिटायर हो रहा है,
तो उसके पास इतनी बेनिफिट्स हो कि वो उस चीज को एंजॉय कर सके ठीक इन है, प्राइवेट आपने सेक्टर्स में, बिकॉज so for गवर्नमेंट you, उसमें तो है, लेकिन आपके प्राइवेट सेक्टर्स में कोई इस तरह के प्लान्स नहीं होते। मतलब आप लाइक अगर अभी हम प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं, वी गेट अ गुड सैलरीज अमाउंट, और उसके साथ अदर अलाउंसेस हमें मिल जाते हैं, मेडिकल मिल रहा है, लेकिन वो हमारे जस्ट जॉब तक रहता है। बट व्हाट अबाउट इन योर फ्यूचर, जब हम ओल्ड उसमें जाएंगे एजेस में, तो उस तब क्या हमारे लिए होगा? आई थिंक सो कि रिटायरमेंट जो है वो बेटर हो सकता है। थैंक यू। good, good. So for you, retirement plan is important. So anyone else who want to join? Okay, I would like to say कि यहाँ पे the four of the plans other than the flexible work environment, चाहे वो health insurance है या professional training है या जो भी है, वो सारे या vacations वाला है, all of those are थोड़े थोड़े टाइम के। रिटायरमेंट वाला भी आफ्टर यू डन द सर्विस, डे टू डे एवरीडे लाइफ को जो अफेक्ट कर रहे हैं, according to me that is the flexible work environment. And in a country like ours jahan par there are people who are the sole breadwinners of the family, mostly they need to be present with their families. Secondly unki apni well being aa jati hai. Thirdly fuel cost aa jati hai. So if they have flexible work arrangement where some days they can work remote and some days they can come to work, it benefits them on daily to daily basis. So ये उनकी overall well-being और productivity को बहुत enhance कर सकता है, and it will be a double-edged source. मतलब कि इससे फायदा कंपनी को भी होगा, productivity enhancement, और employee को day to day life में होगा कि उस पे थोड़ा सा pressure कम होगा. Good. Anyone else? मैंने किसी का पढ़ा था, उसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लिखा था। यस, जी रोमान। मैम इसमें आई थिंक ये डिपेंड करता है कि इस वक्त आपकी नीड क्या है। मतलब ये डिफरेंट जो हम पैकेजेस देख रहे हैं या ऑप्शंस देख रहे हैं, तो इसमें एम्प्लॉय के नीड पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं कि जिनको लिबर्टी चाहिए होती है, जो मतलब जो रूटीन के वर्किंग आवर्स होते हैं कि फ्रॉम 8 to 4 या फ्रॉम 9 to 5, वो वाला कल्चर उनको पसंद नहीं होता। दे वांट सम लिबर्टी इन देयर लाइफ, ताकि मतलब जब भी उनको टाइम मिले तो वो कहीं पे भी बैठ के जो है रिमोटली काम कर सकें। तो उनके लिए जो है वो फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिस तरह भी एक पार्टिसिपेंट ने बात की कि जी पोस्ट रिटायरमेंट उनको बेनिफिट्स चाहिए होते हैं कि जी आफ्टर देयर रिटायरमेंट वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें और इजीली जो है उसमें अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकें। तो लेकिन जो जो मैं सेकंड करूंगा, आई थिंक शी वाज सिमल नसीब, आई थिंक इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, कि जी आजकल जो स्पेशली पाकिस्तान का कल्चर है और पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है कि आप एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। ओवरऑल जो आप कंडीशन देखें, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखें या आप अपना जो जॉब मार्केट है उसको देखें, तो उसमें आपको जो फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट है वो ज्यादा आपको सूट करता है। मतलब आपको थोड़ा सा जो है वो मेंटल पीस चाहिए होता है। जो वर्क लाइफ बैलेंस का एक एलिमेंट है वो मिसिंग है आजकल, जो मैं फील कर रहा हूँ। तो उसमें यह है कि बंदा थोड़ा सा अपने फैमिली को भी टाइम दे, अपने बच्चों को टाइम दे, थोड़ा सा जो है वो टिपिकल जो एक हमारा ऑफिस का कल्चर होता है, ऑफिस टाइमिंग्स होती हैं, उससे थोड़ा सा हट के आप जो है वो काम करें। तो उससे थोड़ा सा ये होता है कि आप मेंटली पीस में रहते हैं और आपको जो है वो एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसमें मिल जाता है। ठीक, वेरी गुड। सो एक चीज है जिसको कहते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो हमारे लिए बड़ा पीछे चला गया, वो लास्ट में आता है, which I think is very important as well. क्योंकि जब आप अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करेंगे, that is a very important benefit. तो आपका जो स्पैन ऑफ जॉब है या टाइम है वो इंक्रीज होगा, आपकी जो जॉब प्लेसमेंट्स हैं वो अच्छी होंगी, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी और रोल्स जो हैं वो बेटर होंगे। सो इस चीज को भी हमें कंसिडर करना चाहिए कि जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मूव ऑन नाउ। So pay equity. The gender pay gap remains a persistent issue around the world, with women earning less than men across most occupations and industries. The racial pay gap also remains significant, with people of color earning lower wages than their white counterparts.
these inequities need to be addressed through policy changes, corporate accountability, and shift in social norms around compensation. So this is again very important, pay equity, जो हम सबको इसके बारे में बहुत अच्छे से clear है. Compensation for philosophy. Performance-based compensation pay should be tied to employee contribution and business results. आप कितनी contribution है आपकी, क्या business development कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको बेस की जाए आपकी performance based हो compensation. Market competitiveness, the compensation should be benchmarked to attract and retain top talent. आपने top talent को अगर retain करना है तो आपको market surveys and market का comparison करना बहुत जरूरी है कि market में उस standard के और उस talent को क्या compensation and benefits दिए जा रहे हैं. So you should be market competitive होना चाहिए आपको. Equity and fairness, internal and external compensation equity should be monitored. So तीन चीजें, performance based compensation है जिसमें आपके bonuses वगैरह आ जाते हैं, market competitiveness है when you have to hire somebody और किसी को retain करना है, top talent को अगर आपने hire करना है तो market competitiveness आ जाती है. फिर equity and fairness है कि आप internal and external compensation को equity के साथ कर रहे हैं नहीं कर रहे. These principles ensure our compensation programs align with business goals and support a high performance culture. Retention. Competitive compensation offer pay that is in line with or above industry standards to attract and retain top talent. Benefit package provide a comprehensive benefit package including health insurance, retirement plans, PTO, work-life balance, promote work-life balance through flexible work schedules, remote work options, generous leave policies, career development, invest in professional development and career growth opportunities, recognition programs, implement recognition programs to reward strong performance and acknowledge employee contributions, culture of appreciation, foster a positive workplace culture where employees feel valued and appreciated. So if you want your employee to be retained और वो आपके पास ज़्यादा टाइम के लिए रहे, तो these are the things on which you should work. So इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो unusual हो या जो हम provide ना कर सकते हो. अगर कोई companies हैं, organizations हैं, जो provide नहीं करें, then they should work on it. So these are the 6 core areas. If you are good in these 4 areas, then you are able to retain good talent. Cost management, align compensation with business strategy. Compensation should support overall business goals and strategy, focus on performance-based pay and incentives, benchmark against competitors, regularly benchmark pay and benefits against competitors to ensure competitiveness, manage salary budgets, set budget for merit increases, and closely monitor overall payroll cost. Evaluate benefit options. Assess benefit plans to balance cost and employee satisfaction. Use variable compensation. Incorporate bonuses, commissions, and incentives to reward performance. So cost को आपने कैसे manage करना है? Cost management के ये 5 different parameters हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं. Business strategy के साथ align करें compensation को. Benchmark against competitors. Competitors क्या दे रहे हैं? इस जो भी आप काम करा रहे हैं उसके against. सैलरी बजट्स को मैनेज करें कि जो आपका टॉप टैलेंट है या पेरोल को मैनेज करते हुए आप उनको कैसे बजट स्पेशल रख सकते हैं फॉर देम एंड इवैल्यूएट बेनिफिट ऑप्शंस. आपके पास ऑप्शंस क्या है और वेरिएबल कंपनसेशन क्या है. इनकॉर्पोरेट बोनसेस, कमीशंस एंड इंसेंटिव्स टू रिवॉर्ड परफॉर्मेंस. Employee well-being. So employee well-being is very trendy these days. So क्या है employee well-being? Employee assistance program, counseling and referral services to help employees deal with personal and work-related problems. Wellness program. Ali Hassan, you want to add something? You have raised your hand. मैडम अभी आप कंटिन्यू करें. वो मैं पहले कुछ कहना चाह रहा था, अभी मेरे ज़हन से वो निकल गया, तो लास्ट पे आता है मैं. अच्छा ठीक. Wellness program, on-site gym, yoga classes, health screening to promote healthy lifestyle, paid time off, vacation, sick days, and personal days to relax and recharge, flexible work arrangements, ability to work remotely and adjust hours to better work-life balance, supporting overall employee health and well-being,
leads to more engaged and productive employees. This is very important and these days जो अच्छी companies हैं वो इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं. Key factors क्या हैं? Cost of living. Cost of living like housing, food, transportation in the location impacts salary levels. Local labor regulations, local labor laws, unions, minimum wages and impact salaries. Talent competitiveness, salaries influenced by demand, supply of required skills in the location. Many complex factors like cost, regulations, competition, impact compensation in each location. So location is also very important, that where you are located and कहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है आपकी compensation and benefits के ऊपर. Cultural difference. Cultural differences क्या है? Country, किस country में है? पे टाइम ऑफ कितना मिलता है? यूनाइटेड स्टेट में 10 days होते हैं, फ्रांस में 30 days है, इंडिया में 12 days है. पेड टाइम ऑफ यूनाइटेड स्टेट को देख लें, जैसे हम बात कर रहे थे कि दे आर वेरी टफ, दे आर, और वो सिर्फ 10 दिन देते हैं आपको छुट्टी. एंड आई वर्क विद एन यूएस कंपनी और वो ये 10 days से 15 days पे जाते हैं, इसके ऊपर आपको नहीं देते. एंड मोस्टली इनके दे आर नॉट एज फ्लेक्सिबल एज पीपल एज कंपनीज इन यूरोप. So they are very rigid in their rules and regulations. And France में देखिए, यूरोप की जहाँ बात हो रही, 30 days आपको ऑफ मिलते हैं, एंड इंडिया में 12 days हैं. पाकिस्तान में 21 days आपको ऑफ मिलते हैं एज एन एनुअल लीव. ग्लोबल पर्सपेक्टिव. एवरेज एनुअल सैलरी इन USD, यूनाइटेड स्टेट में 62,000 है, यूनाइटेड किंगडम में 50,000, जर्मनी में 55,000, फ्रांस में 45,000, जापान में 40,000 US डॉलर है. पाकिस्तान की आप सोच सकते हैं किधर होगी. Local market trends. Wage growth expected to be 5 to 7% in 2023 based on current economic conditions. Average wage growth for skilled roles is projected to be moderate in the 5 to 7% range for 2023. High demand rising for IT and engineering roles, with growing number of technology companies hiring demand for software engineers, AI specialists, and data analytics role is increasing sharply. So more remote work flexibility. Many companies are offering increased remote work and flex time policies to attract top talent, especially for IT and technical roles. Overall, the local market trends indicates modest wage growth, rising demand for tech talent, and more flexible remote work policies. I would like Mansoor Saab to give his insight over here as well, because he's very good in this as well. Mansoor Saab, are you available to talk on this? यस जी बिल्कुल. अभी जैसे पहले भी मैंने एक बात की थी ना कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं तो रिमोट वर्किंग का बड़ा ज़्यादा आ चुका है, इन ट्रेंड है, और आफ्टर कोविड, और उसके ऊपर बड़ा चैलेंज आ रहा है. और हाँ, इस वक्त जो हमारी पाकिस्तानी लोकल मार्केट है उसके सामने भी बड़े चैलेंजेस हैं. तो ओवरऑल इन्फ्लेशन को निकाल के देखेंगे तो आपको इतने ही % रेज मिलेगा. अगर इतना भी मिल जाए तो बड़ी बात है इस सिनेरियो में ना, क्योंकि अगर जो इन्फ्लेशन का रेट ऑलमोस्ट डबल डिजिट में जा चुका है और इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 27% 28% तक जा चुकी है, बल्कि उससे आहिस्ता अभी 1-2% कम हुई है ना. तो इस पर्सपेक्टिव में देखें तो आपका रेज इतना ही बनता है, 5 to 7% रेंज में बन रहा है, राइट. और रिमोट वर्किंग, अच्छा रिक्रूटमेंट देखते हैं ना, टेक्निकल रिक्रूटमेंट का बड़ा ट्रेंड है, और ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कि अभी इवॉल्व करेगा. और टेक्निकल रिक्रूटर सारी दुनिया में काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे HR के जनरल रिक्रूटमेंट में की बात करते हैं ना, टेक्निकल रिक्रूटर थोड़े डिफरेंट है, और बहुत ज़्यादा उनको टेक्निकली उनकी साउंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए IT से, और उससे रेलेवेंट चीज़ों से, सॉफ्टवेयर से, और उसकी जो लैंग्वेजेस हैं उनके हवाले से. और टेक्निकल रिक्रूटर के तौर पे अगर आपने काम स्टार्ट करना है तो आपको उसके लिए कुछ एग्जाम्स भी पास करने पड़ेंगे. तो दैट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, राइट. तो ये सारा ओवरऑल है. और इसमें यही है कि इस वक्त इन ट्रेंड क्या चीज़ें हैं. अगर आप रिमोट वर्किंग के ऊपर जाएंगे तो आप पाकिस्तान में रह के एज अ टेक्निकल रिक्रूटर भी काम कर सकते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्लोबली, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए भी ना काम कर सकते हैं जी. थैंक यू. लेकिन इसमें एक चीज मंसूर साहब, जैसे आपने भी डिस्कस किया कि ग्रोथ जो है वो 5 to 7% इन 2023 है.
ये जी जी ये इस रेंज को आप थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ फॉर स्किल्ड रोल्स इन मॉडरेटली 5 to 7% रेंज क्या मतलब होगा, कि कैसे इस चीज को थोड़ा मुझे भी आप एक्सप्लेन करें, दिस इज न्यू फॉर मी एज वेल। जी जी बेसिकली जो इस वक्त जो चैलेंजेस है ना इन्फ्लेशन की वजह से और बहुत से फैक्टर्स है ना उनकी वजह से। अच्छा यूरोप जो यूरोप है या अमेरिका है वहाँ पे जो वो आपको पता है इंटरेस्ट रेट भी कम होते हैं ना, इतने ज्यादा नहीं होते। अगर वहाँ पे 2-3% भी इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो वहाँ पे शोर मच जाता है। ठीक है यूरोप और पर्टिकुलरली यूरोप में, अमेरिका की बात भी मैं कर रहा हूँ साथ में। लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त हम तकरीबन 30% इन्फ्लेशन में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 30% तक चला गया था, जो वहां से अभी 2-3 डिजिट 2-3 नंबर कम हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप जब इसको कंपीट करेंगे ना, सपोज आपकी इंक्रीमेंट अगर 30% भी बढ़ जाएगी फॉर एग्जाम्पल, तो उसके मुकाबले में आप इन्फ्लेशन को देखेंगे, इन्फ्लेशन क्या है ना। तो अगर इन्फ्लेशन 30% है और आपकी सैलरी 20% बढ़ी है तो इसका मतलब है कि आप 10% पहले से गरीब हो गए हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने बड़े हाईएस्ट यानी कि एम्बिशियस लेवल पे नंबर दे दिए आपको। हालांकि इतनी नहीं इंक्रीज होती ना, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंक्रीज करती है, राइट। तो ओवरऑल इतनी ही रेंज में रहेगी जो प्रोजेक्टेड है। जो इस वक्त ग्लोबली चैलेंज पड़े हुए इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं उसकी वजह से ये 5 to 7% यानी कि वेज इंक्रीज करेगी लोगों की ओवरऑल। यानी कि फेयर लिविंग वेज जिसकी बात करते हैं ना, एक तो है ना मिनिमम वेज, एक कंसेप्ट वो है। एक कंसेप्ट ये है कि फेयर लिविंग वेज के, जिसका आपने यूनिलीवर में एक ऐड भी देखा होगा, आजकल बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है ना ऐड, बाकी पार्टिसिपेंट ने भी देखा होगा। यूनिलीवर के जो है आमिर प्राचा, वो एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस भी कर रहे हैं कि फेयर लिविंग वेज कितनी होनी चाहिए ना। मिनिमम वेज इस वक्त 32,000 है अभी मिनिमम जो बजट 32,000 है, हाँ जी। अभी बजट में आई है ना, जो अभी हम्म अप्रूव हुई है अभी। ठीक है, लेकिन ये मिनिमम वेज है, इसमें गुजारा करना मुश्किल है, इसमें गुजारा हो नहीं सकता। जबकि 32,000। जी 32,000 में ना, हालांकि ये भी अभी बड़ा अच्छा खासा रेस दिया ना। जो ये सिटी सर्वे हुआ हुआ है और जो रिसर्च स्टडीज बताती हैं कि एटलीस्ट जो बिग सिटीज हैं वहाँ पे आपको अराउंड 50,000 आपकी मिनिमम वेज होनी चाहिए, और जो स्मॉल सिटीज हैं वहाँ पे आपके अराउंड 35,000 2000 हाँ होना चाहिए, इतनी इतनी तब जाके आप बेसिक चीजें पूरी कर सकते हैं। बेसिक चीजें थैंक यू पूरी कर मंसूर सकते साहब। हैं। ठीक है। जी आगे है फिर रेगुलेटरी लैंडस्केप। 2019 में पाकिस्तान वेज बोर्ड was constituted in 2022. A 25% salary increase was ordered for government employees. In 2023, minimum wage was increased from rupees 17,500 to rupees 32,000 per month. ये जो आपके बजट अभी इसमें अनाउंस हुआ है, लास्ट ईयर इट वाज 25,000, इस साल इसको 32,000 कर दिया। 17,500 was in 2018 and 19. So this is how it works. Best practices क्या है? Set सही है। clear goals and objectives. Establish clear goals and objectives for the compensation program that align with overall business strategy. Reward performance. Link pay increases and bonuses to individuals and company performance. Conduct regular salary surveys. Conduct regular salary surveys to benchmark pay against competitor and industry standards. Be transparent. Communicate pay structure and policies clearly to employees. Pay competitively. Offer competitive base pay and incentives to attract and retain top talent. Provide benefits and perks. Offer comprehensive benefits and perks to provide value beyond base pay. So these are basic practices mostly. Everybody is clear on these things. And then rethinking compensation. Flexible compensation. Allow employees to customize their compensation packages based on individual needs, such as more vacation days or remote work. Stipend, remote learning stipends. Offer stipends for remote employees to take online courses and develop new skills. Performance-based bonuses. Incorporate bonuses and incentives paid tied to performance goals and metrics for remote employees. Wellness perks include wellness perks like gym memberships, meditation apps, or healthy food delivery. Virtual team building. Provide stipend for virtual team building activities to encourage connection between remote employees. Unlimited PTO. Give employees flexibility with unlimited paid time off policies. This is to rethink. इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये विश लिस्ट है
So इस wish list में से हम क्या चीजें पूरी हो सकती हैं, that depends on the organization where you are working, and where there are few organizations which can provide all these things. There are few which can pick one out of it and can start with that. Like for example, जिसके ऊपर आपका कोई खर्चा नहीं होगा, that is आपकी team building exercises हैं, wellness perks हैं, उसके अंदर आप MOUs करके you can start these things. Performance based bonuses पे पैसे लगते हैं, paid unlimited paid time off, maybe of course company needs to think on that as well. So there are different ideas on which the companies can rethink and can have their they can improve their compensation and benefit plans. Type of compensation: direct compensation and indirect compensation. So compensation framework क्या है? Total reward framework है, basic pay है आपकी, उसके बाद आपकी basic pay fixed पे आपकी आ रही है, फिर फिक्स पे से वेरिएबल पे है, आपकी टोटल कॉस्ट है, वेरिएबल पे के बाद आपकी बेनिफिट्स एंड लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स हैं, टोटल डायरेक्ट कंपनसेशन है, फिर अलाउंसेस हैं, टोटल रिम्यूनरेशन है, इमोशनल रिवॉर्ड है एंड टोटल रिवॉर्ड है. ये एक फ्रेमवर्क है. एक आपकी बेसिक पे होती है जिसके ऊपर आप हायर हो जाते हैं, वो फिक्स्ड पे है. फिर उसके बाद उसमें से कुछ आपकी रिडक्शन होकर फिर फिक्स्ड पे हो जाती है जो आपको अमाउंट मिलता रहता है. फिर वेरिएबल पे है. वेरिएबल पे में भी आपकी कोई आपकी TADA है या आपकी कोई कमीशन है वो ऐड हो जाते हैं, तो वो आपकी टोटल कॉस्ट में ऐड हो जाता है. फिर बेनिफिट्स एंड लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स क्या है? लॉन्ग टर्म आपको क्या मिल रहा है इसमें? फिर टोटल डायरेक्ट कंपनसेशन में आ जाते हैं कि डायरेक्टली आपको पेमेंट प्लान मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, ग्रेजुटी मिल रही है, ये आपके कंपनसेशन प्लान में आ जाते हैं. फिर अलाउंसेस हैं जो आपको रेगुलरली मिल रहे हैं, हेल्थ अलाउंस मिल रहा है, फ्यूल अलाउंस मिल रहा है, EOBI मिल रहा है, ये आपके अलाउंसेस हैं. फिर टोटल रिम्यूनरेशन उसमें वो ऐड हो जाती है. एंड देन इमोशनल रिवॉर्ड के आपको अप्रिसिएशन कितनी मिल रही है, आपको रिवॉर्ड्स कितने मिल रहे हैं, आपको कितना इनकरेज किया जाता है, कितना मोटिवेटेड रखा जाता है, ये सारी चीजें मिला के टोटल रिवॉर्ड बनता है, दैट यू बिकम हैप्पी एंड यू आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज अ बेसिक फ्रेमवर्क. Direct compensation, it enables the employers to make sure that employees are getting paid without any biasness inside the premises of an organization. All the benefits, including the employee's salary as well as health-related benefits, are included in this type of compensation. Health-related benefits हैं, salaries हैं, ये सब directly जो मिल रहा है आपके employee को without any bias is called direct compensation. Indirect compensation, indirectly motivate the employee. It doesn't involve the direct transfer of the money between the two parties. Instead, the employees are helped with multiple other beneficial things instead of getting benefits in cash. It eventually creates a sense of belonging and admiration for the company. Like for example, जिसमें आपके dinners हो, family dinners हो गए, आपकी day outs हो गए, आपकी जो अप्रिसिएशन रिवॉर्ड्स हो गए, सर्टिफिकेशंस हो गए, जिसमें आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगी, ये वो चीजें जो आपको डायरेक्ट कंपनसेशन या इनडायरेक्ट कंपनसेशन है. कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन क्या है? एनालिसिस ऑफ जॉब है, डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब है, एवेल्युएशन ऑफ जॉब है, पे स्ट्रक्चर्स हैं, फिर सैलरी रिलेटेड रिसर्चेस एंड सर्वेज हैं. इनके ऊपर बेस करके आपकी कंपनसेशन डेवलप होती है. Job analysis क्या है? Control the inaccruing cost of the organization to enhance the overall motivation of the employees. हमने पहले discuss किया है, या फिर job analysis में आता है. Job description plays a crucial role by being the most vital component of the entire selection system of a candidate and their compensation. Description of the different jobs are made differently or for the same profile. Also, it's made as one for the whole family. So job description is also very important when you are recruiting somebody. So job description से ही related होती है आपकी compensation and benefit. So entire selection system based करता है आपकी job description पे, job description के से ही based करती है आपकी compensation and benefits. Evaluation of job candidates often feel the compensation of different jobs is co-intentional. It allows them to have a basic idea about the compensation model followed by various companies for the same profile. Once the candidate make the compensation, he selects the best suitable company in terms of compensation level. एक कोई अगर top talent है और उसको different जगहों से एक ही job offer है,
तो सैलरी तो वो सैलरी को नहीं देखेगा, वो कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स को देखेगा कि किस में ज्यादा है। जहां आपको अच्छे कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, दैट हेल्प्स, that is the core area where the person decides that which job he or she has to pick. So वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सैलरी के साथ आपकी कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स क्या ऑफर कर रहे हैं। तो पे स्ट्रक्चर्स हैं, पे स्ट्रक्चर में the pay structure allows the companies to standardize the overall compensation strategy. Also, it often comes up with the grading system. Here, each grade comprises the minimum fixed salary and with the increase in it. The compensation takes a peak to under the predefined maximum range of it. So, compensate जो आपका pay structure है, वो allow करता है companies को standardize overall compensation strategy. कि आपकी जो पे स्ट्रक्चर्स आपने बनाए हुए उसी के इर्द गिर्द आपकी बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन भी रिवॉल्व करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, for a manager level, the compensation and benefits would be different than an officer level and as compared to the senior management. So this is a very simple thing to understand, that your pay structure revolve around your compensation and benefits revolves around your pay structure. Salary related researches and surveys. Salary related surveys are customarily conducted aiming to gather the overall market database on the salary. We all know that data is everything. Here what happens is that the companies are eager to buy the data based on the surveys done regarding the salaries via survey companies to gather the overall market database on the salary. We all know that data is everything. This is the survey generally includes the following: inflation rates, average of the salary budgets, average salaries to date, cost of living. ये हमने सारा भी डिस्कस किया कि salary related researches and surveys are how important it is, कि आपको market survey कितना important है if you are developing a framework for compensation and benefits. So competitiveness or relevance to the industry is very important. So उसके लिए आपके salary related researches and surveys are very important. Now, key takeaways are: compensation should be fair and competitive. Compensation should align with market rates to attract and retain top talent. Benefits should support work-life balance. Other flexible benefits like remote work, generous leave policies, and wellness programs. Benefits should support work-life balance. So क्या इसमें offer करते हैं? Remote work है, generous leaves है, and wellness program है. Customized compensation for each country. Understand localization needs and customized pay, bonuses and benefit for each country. हर मुल्क का अपना एक सिस्टम है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपना इन्फ्लेशन का रेट है, तो उस हिसाब से हम कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स को डिसाइड करते हैं. Focus on total rewards, look beyond just compensation and offer career development, recognition and other rewards. Career development again is very important if you have to, if you want to improve your salary structure, your role and everything. So you need to be current and you need to develop yourself. Communicate compensation philosophy, explain pay structure, raises and bonuses to employees to boost engagement. Employees को on board लेना चाहिए, उनको पता होना चाहिए क्या हो रहा है. Communication is very important. If you will not communicate with your employees, they will not know that what benefits you are offering to them. Maybe आपने उनको handbook में लिख दिया है, लेकिन how often you are telling them that these are the benefits which they can have. Then regularly review compensation, conduct market research and employee surveys to ensure compensation stays competitive. So thanks a lot for your time today. So I'm going to stop sharing now. Now it's time, if you want to discuss anything, we are available. So today's topic was all about compensation and benefits. So इसमें हमने बहुत सारे areas को हमने discuss किया है. So if you have any area where you have any questions, you can ask us. बिल्कुल सही कहा आपने. हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं और हम चाहेंगे कि वो अपनी अपनी जो सिनेरियोज हैं उस पे डिस्कस करें, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें कि वहाँ पे कंपनसेशन एंड बेनिफिट के जो ये कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो रिवॉर्ड मैनेजमेंट टोटल रिवॉर्ड में आ जाता है, वहाँ पे वो किस तरह से
ट्रीट करते हैं इसको, और बेंचमार्किंग कैसे करते हैं, इक्विटी को कैसे देखते हैं, और ओवरऑल जो इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी, उन चीज़ों को भी मलूज़ खातिर रखते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा अली हसन साहब को। अली हसन साहब कोई पॉइंट भी बात बीच में रेज करना चाह रहे थे, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पॉइंट आप बात वहाँ पे रेज करना चाह रहे थे यहाँ पे डिस्कस करें, बात करें, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में जो आपका एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर करें प्लीज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस वक्त शायद हम बात कर रहे थे कि कौन सा बेनिफिट ज्यादा बेहतर है, शायद वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो रही थी या रिटायरमेंट के ऊपर इस तरह से बात हो रही थी। तो तब मैं जी सिर्फ जी। थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था कि उससे पिछली स्लाइड में हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखा चीज़ों को। तो बेसिकली वो चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, कंट्रीज के अंदर रिसर्चेज होती हैं और रिसर्च की बेस के ऊपर ये पॉइंट्स निकलते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी पॉपुलेशन के ऊपर कि वो क्या चाह रही है और उसमें उस वहाँ के क्या हालात हैं। एक मैडम ने कहा कि रिटायरमेंट प्लान्स बड़े मैटर करते हैं, और एक ने कहा कि नुमान साहब ने भी इस बात को इंडोर्स किया कि जो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस है ये चीज़ बड़ा मैटर कर रही होती है। तो इससे ही जाहिर होता है कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट इंक्लिनेशन है इस हवाले से। बेसिकली कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम अभी जो हमारे काम चल रहे हैं, जितने भी चीज़ें चल रही हैं, वो अच्छे तरीके से पूरी हो जाए। तो उनको चाहिए होता है कि उनको पे ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, और उनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो जाए। इसके अलावा उनको करियर डेवलपमेंट के अच्छे मौके मिल जाएँ। और कुछ लोगों को ये होता है कि हम जो है ना वो रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं जो आज से जब उनकी 60 साल की एज होगी या 65 साल की एज होगी, तो तब जो है ना वो उनको बेनिफिट्स मिल जाएँ। बेसिकली मैं पब्लिक सेक्टर से हूँ, तो मैं थोड़ा-सा उसी पर्सपेक्टिव से इसको लेके चलूँगा। पब्लिक सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो जॉब सिक्योरिटी है। जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो आज तक मैंने देखा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब सिक्योरिटी है। अब जॉब सिक्योरिटी जब हो जाती है, फिर लोग वहाँ पे रिटायरमेंट्स की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि वहाँ पे जाके हमें ना बेनिफिट्स वगैरह मिलना शुरू हो जाते हैं। मेरी भी थोड़ी-सी डिफरेंट अप्रोच है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है, तो मुझे रिटायरमेंट के बेनिफिट से कोई इतना लगाव नहीं। मुझे अभी पे ज़्यादा दे दी जाए, अगर मेरी मिसाल के तौर पे 50,000 है और मुझे 1 लाख रुपया अभी दे दिया जाए, रिटायरमेंट की बाद में देखी जाएगी क्योंकि मेरी जितनी ज़रूरियात हैं वो अभी पूरी हो जाएँ। तो इस तरह के भी जो डिफरेंट चीज़ें हैं ना वो भी सामने आती हैं और वो बन सकती हैं। तो बेसिकली हर बंदे की अपनी मोटिवेशन होती है कि वो किस तरफ जाना चाह रहा है। वो रिटायरमेंट को प्लान्स को देखना चाह रहा है या जो अभी जो करंट सिनेरियो है उसको मद्देनज़र रख के तो वो चलना चाह रहा है। बहरहाल हमारी कंपनी के अंदर अभी बीपीएस स्केल का ही है, तो बीपीएस स्केल आपको पता है ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो तकरीबन सेम होते हैं सारे के सारे। तो जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, जो पे है वो तो उसी हिसाब से मिलती है, ठीक है। नुमान साहब भी यहाँ पे हैं, अकबर साहब भी हैं, तो अगर मैं कहीं पे गलत बोल जाऊँ या कुछ छोड़ जाऊँ तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो उस चीज़ को पूरा कर दें। तो इसके अलावा डिफरेंट अलाउंसेस भी यहाँ पे जो है ना वो मिलते हैं। थोड़े बहुत मैं बता दूँगा, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पे अब ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर एक 18 ग्रेड का जो है ना वो ऑफ़िसर आया तो उसको एक बेनिफिट ये भी दिया जाता है कि एक उसको गाड़ी दी जाती है। उसको सिम भी प्रोवाइड की जाती है, उसको लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ताल्लुक़ रखती है तो वहाँ पे उसको यूनिट्स भी जो है ना वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह के बेनिफिट्स भी हमारी कंपनी के अंदर जो है ना वो लोगों को मिलते हैं। इसके अलावा बोनसेस भी होते हैं, साल के अंदर 2 बोनसेस जो है ना वो मिलते हैं। और पे भी जो है ना वो एक तो जून के बाद यानी जुलाई में बढ़ती है और 1 दिसंबर में जो है ना वो थोड़ी-सी बढ़ती है पे। तो इस तरह से यहाँ पे भी जो है ना वो बेनिफिट्स पाए जाते हैं। करियर डेवलपमेंट के हवाले से आपको पता है यहाँ पे सीनियरिटी बेस्ड चीज़ें चलनी होती हैं, तो लोगों को इस चीज़ का पता होता है कि हमारी जो प्रमोशन है वो कब होगी, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी मैडम ने ज़िक्र किया इस हवाले से, वो भी थोड़ा बहुत इसमें एस्पेक्ट शामिल है।
तो ओवरऑल एक सिस्टम जो है ना वो अभी फिलवकल चल रहा है, और आने वाले वक़्त में शायद कल भी बात हो रही थी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर, तो परफॉर्मेंस बेस के ऊपर अब सिस्टम आ रहा है, तो प्रमोशंस भी जो है ना वो उसी की बेस पे 18वें से 19वें ग्रेड में जो होनी है उसी की बेस पे सोच रहे हैं। इसके अलावा उसको थोड़ा-सा पे के साथ भी मेरा ख़्याल ताल्लुक बनाने की उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो ये अकबर साहब और भी ज़्यादा बेहतर आपको इस बारे में बता सकते हैं। शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी लर्निंग बाकी लोगों के साथ शेयर की ना। गवर्नमेंट सेक्टर में यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक कंफर्ट जोन भी होता है, जो कि कंफर्ट जोन है वो आपके पोटेंशियल को एक्सप्लोर होने नहीं देता नॉर्मली ना। होता यही है। एक बड़ी मशहूर किताब है और अच्छी किताब है, और एक फिलोसफी भी दुनिया में काम करती है, दैट इज गुड इज गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट, राइट। एक बुक है जिम कॉलिन की, गुड टू ग्रेट। उसमें भी यही चीजें डिस्कस की कि आप गुड के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं, हो सकता है आप अपने ग्रेड को एक्सप्लोर ही ना कर पाए। हमारा एक सेशन था, हमने एक 4 मंथ का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कराया था नस्ट के साथ मिलकर ना, जिसमें CLP नाम के नाम से सर्टिफाइड लीडरशिप प्रोफेशनल प्रोग्राम, ठीक है, एक सर्टिफिकेशन थी। वहाँ पे पब्लिक सेक्टर से बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया उस प्रोग्राम में। फैकल्टी हमारी थी, कंटेंट हमारा था, और जो फोरम था वो नस्ट का था, नस्ट का प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, राइट। तो वहाँ पे हमारे पास एक आए थे, एक हेड ऑफ PTV थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया एज अ स्टूडेंट, और उन्होंने 4 मंथ का वो सर्टिफिकेट किया, और वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। वही गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब थी। उन्हें पता था कि हायर टू रिटायर वाला सिनेरियो होता है ना, कि बस हायर किया और उसके बाद रिटायर ही होंगे। लेकिन उस सेशन के अंदर जो डिस्कशन हमारी हुई, तो उनको पता लगा, और वहाँ पे एक्सप्लोर हुआ, और उनके सामने ही एक्सप्लोर हुआ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में उन्होंने देखा, स्टडीज देखी, और मुख्तलिफ बुक्स को हमने जब पढ़ा, मुख्तलिफ थ्योरीज को डिस्कस किया, तो उन्हें लगा कि वो जिस जगह पे वो मुतमईन होकर बैठे हुए हैं वो जगह उनकी नहीं है। तो उन्होंने जस्ट आफ्टर हैविंग दैट कोर्स, उन्होंने वो कोर्स खत्म किया, फौरन ही एक और टीवी चैनल था, जिस सुनो टीवी चैनल आया हुआ है, और नेशन वाइड वो प्राइवेट चैनल है, उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया एज अ CEO। और उस वक्त ज्वाइन किया जब उसकी इनिशियल वर्किंग हो रही थी, अभी उनकी हायरिंग होनी थी, सारा स्टाफ हायर करना था, नेटवर्क डेवलप करना था सुनो टीवी का। तो वो अभी भी हमारे साथ इन कांटेक्ट हैं, अटैच्ड है ना। तो बताते हैं कि ये एक ऐसी सोच थी जिन्होंने उनको ट्रांसफॉर्मेशन दी, वो चेंज कर दिया। गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब छोड़ के वो चले गए एक बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में। कंपनसेशन उनकी 2-3 टाइम हाई होगी, कंपनसेशन भी अच्छी होगी, सैलरीज भी उनकी हाई होगी, लेकिन रिस्क फैक्टर बढ़ गया, लेकिन चैलेंज भी बढ़ गया। जब चैलेंज बढ़ा तो फिर उनका टैलेंट भी उभर के बाहर आया, और अब वो वहाँ सर्व करेंगे, और कोई और ऑप्शन आएगी तो हो सकता है किसी और बड़े चैनल पे, किसी और दूसरे चैनल पे भी एज अ CEO चले जाएं। मार्केट में आ गए, और इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में भी जा सकते हैं, लोकल मार्केट में भी कहीं ना कहीं अपने आप को वो प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो ये भी एक हमारे पास केस स्टडी थी, सिनेरियो आया था, कि हमें लगा कि वो उन्होंने अपने आप को एक तरह से री इन्वेंट किया। पब्लिक सेक्टर में वाकई ये मसला होता है कि मैं आपको बताऊं, मेरे एक पब्लिक सेक्टर में बड़े मैनेजर थे, HR के, अभी हैं, किसी दूसरे कंट्री में मूव किया है। उनसे मेरी डिस्कशन कुछ अर्सा पहले हुई, कुछ चीज़ें उनको चाहिए थी, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, और मैंने उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की ना, कुछ इशू। तो मैंने उनको बताया कि ये जो चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं, ये बहुत इजीली आप भी कर सकते हैं, और किस तरह कर सकते हैं, आप ChatGPT भी कर सकते हैं, और इस तरह के जो और AI के टूल्स हैं वो यूज़ करके कर सकते हैं। तो लेकिन उनको मैंने बताया जब, तो वो, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में, तो सुबह जाते थे 9 बजे और शाम को 5 बजे वापस आ जाते थे, कोई काम इतना ज़्यादा वो होता नहीं है, इतना लोड भी नहीं होता, वर्कलोड। तो और वो फिर वो बस कंफर्ट जोन में थे, तो फिर उन्होंने कोई और चीज़ कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं की, और ना उनको फील हुआ कि उनको एक्सप्लोर चीज़ें करनी चाहिए ना। तो ये ऐसा हुआ। फिर उस पर बात की तो उन्हें पता चला कि उनको तो पता भी नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन कौन से टूल्स हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं, और वो कि किस तरह से उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। एक और केस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरा छोटा भाई है, वो सुई नॉर्दर्न गैस में बड़ी यंग एज में लग गया एज इंजीनियर। तो उसने अपने आप को देख लिया कि मैं अगर सुई नॉर्दर्न गैस में ही मैं रहता हूँ, स्टे करता हूँ, अपना पूरा कैरियर कैरियर यहाँ पे स्पेंड करता हूँ, तो मैं GM लेवल की पोजीशन पे चला जाऊंगा। लेकिन आफ्टर हैविंग 2 to 3 year सर्विस, उसको लगा कि उसके पास ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, वो काम जॉब तो कर रहा है,
लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो उसने 2-3 साल के बाद ही वहां से रिजाइन किया और पार्को को ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे एक फास्ट पेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जहाँ पे उसको लगा था कि उसकी प्रमोशन और ज्यादा हो सकती है और वो आगे कहीं उससे कहीं आगे जा सकता है। और वहां पे नाथन गैस में जो सैलरी वो ले रहा था, तो उसको छोड़ने के बाद जब उसने पार्को को ज्वाइन किया, तो वहां पे उसने 3 टाइम ज्यादा सैलरी पे वो गया। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो खुद को एक्सप्लोर कर लेते हैं, जो देख लेते हैं, तो फिर वो फिर उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है, फिर वो दूसरी साइड पे भी चले जाते हैं ना। तो इस तरह की चीजें भी है। प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कंपनसेशन ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है, ग्रोथ भी है ज्यादा है, कंपेरेटिव एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। तो ये चीजें डिफरेंट है, बेनिफिट्स भी हैं, और साथ में अगर देखें तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों को लेके हम चल सकते हैं, दोनों सेक्टर्स के हवाले से। राइट जी। जी अकबर साहब, अभी आपका रेफरेंस दिया था, तो आप इसमें क्योंकि आपका फील्ड है तो आप बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। अली साहब ने हमें रेफर किया, आई थिंक सो। अकबर साहब नहीं है अब ना? नहीं जी। I would like to add one thing. श्योर श्योर श्योर। वालेकुम सलाम जी, प्लीज। सर एक जो चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी दैट इज़ अ बिजनेस नेचर। हमारे पास जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट जो है वो बिजनेस नेचर के साथ आती हैं। हम कैटेगराइज उनको करते हैं स्मॉल मीडियम एंड लार्ज कंपनीज में। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प एंड ब्रांड, तो उसमें एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कंपनी का बजट होता है। यूजुअली एचआर जहाँ पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एचआर प्रोफेशनल्स वो यहीं पे कर रहे होते हैं कि उनको उस चीज़ पर काम करने उस तरह से नहीं दिया जाता, बिकॉज एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट जो आता है वो ये आता है कि एचआर के लोगों को एक जो एक्सक्यूज़ दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि इस वक्त कंपनी में उस तरह से बजट नहीं है कि हम एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट कर सकें। बट ओवरऑल जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है इट्स डिपेंड। जैसे इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है इकोनॉमी की, उस इकोनॉमी की सिचुएशन में इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा हाई है कि आपका जो ये बेसिक सैलरी पैकेज है वो किसी भी तरह से कॉम्पनसेट नहीं कर रहा किसी भी इंडिविजुअल को। वो आप किसी भी लेवल पे जाके जो है वो उसको देख लें। इवन ये 2 साल पहले भी अगर होता तो भी ना होता, अगर हम लोग इस वक्त हमने जैसे ग्लोबल सिनेरियो में बात की। बट ग्लोबल सिनेरियो में थिंग्स आर डिफरेंट। वहाँ का जीडीपी डिफरेंट है, पाकिस्तान का जीडीपी इस वक्त जो सिचुएशन है वो इतनी इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी ख़राब हुई है कि उसमें हम ये समझते हैं कि हम उनको कंपनसेशन एंड बेनिफिट अगर देंगे तो विच इज़ अ गुड थिंग। नहीं, जो बेसिक सैलरी है, जो फिक्स सैलरी है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक तो ये चीज़, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ आईटी सेक्टर, मैंने अभी जो है पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी काम किया, लोकल कंपनीज के साथ भी किया। सो नाउ राइट नाउ आई एम वर्किंग विद अ कंपनी जो रिमोटली है, एक आईटी फर्म है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। सो मैंने पाकिस्तान का और उनका एक जो डिफरेंस देखा है, इवन उनका जो कल्चर है, उनका जो काम करने का स्टाइल है, वो इस तरह से डिफरेंट है कि अगर पाकिस्तान में लेट्स सपोज हम एक लीव क्राइटेरिया बना देते हैं कि आपने ये आपका सिक लीव है, ये कैजुअल है, और ये आपकी डिफरेंट लीव्स के क्राइटेरियाज होते हैं और आपको लेने। तो यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं कि आफ्टर 3 वर्किंग डेज हम उनसे कहते हैं कि आप अपना मेडिकल सबमिट करवा दें। बट इन द अदर केस अगर वो आपको कंपनसेट कर रहे हैं तो आप उनसे अगर एक चीज़ पे कहेंगे कि आपको लीव चाहिए या आप सिक लीव अप्लाई करते हैं वहाँ पे, मैं आपको ये एक आईटी फर्म का एक्चुअली एग्जांपल दे रही हूँ कि जब उनसे आप ये कहें तो वो आपको आपसे मेडिकल तब तक नहीं मानते जब तक आप उनको खुद नहीं देते। सो अगेन ये एक वर्क कल्चर और वर्क एनवायरनमेंट है उनका कि वो कभी भी आपको यूजुअली उस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर में हो रहा होता है एम्प्लॉय के साथ, और जहाँ जैसे वो ट्रीट कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो यहाँ वहाँ मैंने एक ये चीज़ जो है वो बहुत जो है वो डिफरेंस देखा है। दूसरी जो चीज़ बेनिफिट्स के हवाले से है, सो प्योरली मेरिट बेस पे वो लोग कर रहे होते हैं एंड यूजुअली जो परफॉर्मेंस या बोनसेस उनको मिल रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे मिल रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मैंने अगर 4 महीने पहले ज्वाइन किया तो आई एम द वन कि जिसको मिलना चाहिए और जिसने
कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है उसको नहीं मिलना चाहिए, ऐसे नहीं है। KPIs प्रॉपर जो है वो डिफाइंड होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली होता है। पाकिस्तान में कल्चर एज कम्पेयर टू डिफरेंट ग्लोबल कंपनीज वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हमारे यहाँ इफ़ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड इज़ एक्चुअली अ स्टेट कल्चर, कि जो एक कल्चर जो हमारे यहाँ चल रहा होता है वो किसी हद तक जो है वो थोड़ा सा वो कम करता है। और हमारे यहाँ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इन्वॉल्व है। हम जब बात कर रहे होते हैं सैलरी की रेस की, बोनसेस की, इन सब की बात कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान में जो ट्रेंड है वो जॉब क्विट करने का, मुझे ये लगता है इस वक्त कि 90% रीज़न यही है कि उस तरह से एम्प्लॉयज़ को ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरह से वो डिज़र्व कर रहे होते हैं। सो ओवरऑल आपको एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी देखना होता है। 10 लोग अगर एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो वो 10 लोग एक जैसे नहीं होते हैं। वो 10 लोगों को आप एक तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, आपको डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीक़ों से ट्रीट करना होता है। कुछ फिक्स बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलने ही मिलने हैं, आपके इनिशियल हायरिंग पे आपको मिल जाने हैं, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होंगे और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस पे चीज़ें आ जाएंगी। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप 10 लोगों को एक तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, उसमें से कुछ कैपेबल होंगे जो आपकी बात को समझ आएंगे, कुछ नहीं होंगे। तो मैंने जो ओवरऑल अपना करियर देखा है और वो पाकिस्तान में देखा है, और अब जब पाकिस्तान से बाहर काम कर रही हूँ तो पाकिस्तान में आपको कभी भी उस तरह का मेंटली रिलैक्स रख के आपसे काम नहीं लिया जाता, बल्कि इनफैक्ट आपको ओवरबर्डन करके काम लिया जाता है, जिसमें आप सिर्फ काम को सिर से उतार रहे होते हैं, उसमें कोई भी प्रॉपर प्रोडक्टिविटी शो नहीं हो रही होती या नहीं देखी जा रही होती। सो दिस इज़ माय व्यू ओवरऑल ऑन कॉम्पिटेंस। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा आपने डिटेल से डिस्कस किया और आपने सेट कल्चर की भी बात भी की। हमारे असल में हमारा कल्चर है ना, अच्छा जहाँ सेट कल्चर में तो ये है कि चलो एक सेट है ना, वो उस वही ऑल इन ऑल होता है। लेकिन जो जहाँ पे सेट कल्चर नहीं है, यानी नाम का वन मैन फैमिली बिजनेस नहीं है या कोई और बिजनेस है या इवन कोई और मल्टी नेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ एक सेट तो नहीं है लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे सेट भी बैठे होते हैं ना वहाँ पे। तो वो कल्चर वो उसी को लेके चल रहे होते हैं, जो आपने चीजें डिस्कस की वो वही कर रहे होते हैं। लेकिन ग्लोबली यूरोप में या वहाँ पे जो हम डिस्कस करते हैं तो वेलबींग के ऊपर काम किया जाता है। वो आपको स्ट्रेस में नहीं लेके जाते, ओवर बर्डन नहीं करते, जॉब इवेल्युएशन जॉब एनालिसिस करते हैं, वर्कलोड को देखते हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको ट्रीट किया जाता है वहाँ पे ना। लेकिन हमारा सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है इस पर्सपेक्टिव में। और एक्चुअली हम डेवलप तो हो ही रहे हैं लेकिन साथ साथ हमारे चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताना चाहूँगा कि अभी एक सर्वे आया, रिसर्च आई कि पाकिस्तान के अंदर जो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं उनमें 2 टेक्सटाइल की ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। एक वो है सबसे नंबर 1 पे इंटरलूप है, नंबर 2 पे वो स्टाइल स्टाइल टेक्सटाइल ना। अभी एक टीवी पे एक जो FBR के चेयरमैन थे, एक्स FBR के चेयरमैन, जो गालबन एक बड़ी ऑडिट फर्म में उमायमा जिन्होंने आपको अभी ट्रेन किया था उसके ऊपर रिटेंशन के ऊपर, टैलेंट एक्विजिशन के ऊपर, वहाँ पे काम करती हैं। तो उस जो उसके हेड हैं शब्बर जैदी, उन्होंने भी यही बात यहाँ पे डिस्कस की हमारे उसके अंदर अपने एक प्रोग्राम के अंदर, कि जो ट्रेडिशनल, जो मैं टॉप एक्सपोर्टर की बात कर रहा हूँ, 2 टॉप एक्सपोर्टर, कि जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्टर हैं वो पिछले कितने सालों से काम कर रहे हैं लेकिन वो टॉप 10 में नहीं आ सके, यानी। लेकिन एक ऐसा एक्सपोर्टर इंटरलूप जिसकी मैं बात करने लगा, जिसको 10 साल हुए हैं पाकिस्तान की मार्केट में आए हुए, वो नंबर 1 पे आ चुका है। अब वो इंटरलूप बेसिकली क्या कर रहा है, ये सारे के सारे जो फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, उनको कॉप अप करने के लिए वो स्ट्रेटेजीज डिजाइन करते हैं। इवन उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बना ली कि अपने लोगों को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए डॉलर में पे करना शुरू कर दिया। हमारे प्रीवियस जो बैच था CHRP का, उसमें वहाँ से भी लोग थे, तो उन्होंने मैं डिस्क्लोज किया कि भाई अब वो ये सोच रहे हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ की जो कंपनसेशन है वो डॉलर्स में करें। तो बेसिकली जब आप लोगों को कंपनसेट करते हैं, लोगों के ऊपर डेवलप करते हैं, लोगों की डेवलपमेंट पे काम करते हैं, और तो फिर आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलता है, फिर प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस कर जाती है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हमारा जो एंटरप्रेन्योर है या हमारा जो ऑनर है, जो बिजनेसमैन है, जो लीड करते हैं बिजनेसेस को, हेड करते हैं, ऑन करते हैं,
ये अंडरस्टैंडिंग उन तक पहुंचाने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है, और लोग समझते भी हैं। और कि भाई आप प्रॉपरली कंपनसेट करें, फिर लिविंग वेज प्रोवाइड करना शुरू कर दें लोगों को, कि जो भी ऐड आता है कि जी इतनी इनकम होनी चाहिए हर एक की कि वो जिंदगी आराम से गुजार सके। तो उस तरफ जब आना शुरू हो जाएंगे तो चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल अभी उसमें काफ़ी वक्त लगेगा और काफ़ी चैलेंजेस हैं। इवन जब 25,000 की मिनिमम वेज हुई थी कुछ अर्सा पहले, अब जो कि अब 32,000 पे हो चुकी है, तो पाकिस्तान की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी कंपनीज उस डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चली गई और स्टे ऑर्डर ले लिया उन्होंने। यानी इस इतनी सी चीज पे ना स्टे ऑर्डर ले लिए। तो ये हमारा कल्चर है जिसको चेंज करना अभी इतना आसान नहीं है, लेकिन अभी करना पड़ेगा ना अभी, और उसके लिए काम करना पड़ेगा अल्टीमेटली, रिटेन करने के लिए लोगों को, और जो ब्रेन ड्रेन है उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी। वरना लोग रहेंगे नहीं ना, लोग रुकेंगे नहीं, लोग मूव ऑन कर जाएंगे। राइट। जी। थैंक यू। बाकी लोग जो है मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, जिन्होंने अभी तक चीज़ें डिस्कस नहीं की, जैसे शाजिया हैं, शैला फरीद हैं। तो फिर हम उसके बाद आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाजिया, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आज के सेशन के हवाले से और इस टॉपिक के हवाले से बाकी लोगों के साथ शेयर करें प्लीज। आई थिंक शादिया इज अवे राइट नाउ। जी, कोई कोई भी और पार्टिसिपेंट इस हवाले से बात करना चाहें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें। खैदर हैं हमारे साथ, एक फार्मास्यूटिकल फर्म से, हाई नून से हैं वो। आज उन्होंने थोड़ी देर के लिए ज्वाइन किया, उसके बाद वो शायद लॉग ऑफ हो गए। तो हम उनसे भी उनका पर्सपेक्टिव लेते, फार्मास्यूटिकल का भी हमें समझ आ जाती कि वो किस तरह डील करते हैं और इन चैलेंजेस को। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। शैला जी प्लीज। सर मैं इसमें जी सर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, जो पब्लिक सेक्टर की बात हो रही थी उसमें जो इन सब डेथ केसेस होते हैं और जो बेनिफिट्स विडोज को मिलते हैं या एम्प्लॉय चिल्ड्रंस को मिलते हैं, वो चाहे उनकी रिक्रूटमेंट के हवाले से हों या विडो ग्रांट्स हों या स्कॉलरशिप्स हों या मैरिज ग्रांट्स हों, तो ये भी काफी चीजें होती हैं जो एक एम्प्लॉय को एक सिक्योरिटी का फैक्टर उसको नजर आता है पब्लिक सेक्टर में, जो प्रीवियस मेरे ख्याल में किसी ने और डिस्कशन में नहीं डिस्कस किया था। बाकी तो जब आप सर्व कर रहे हैं तब तो आपको जॉब सिक्योरिटी है ही है, लेकिन एक जॉब सिक्योरिटी का फैक्टर ये भी है, अगर इन केस आप नहीं रहते इस दुनिया में, आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम बाकी रहता है उस हवाले से। तो ये भी एक अप्रिशिएटेबल चीज है जो पब्लिक सेक्टर करता है। थैंक यू सर। बिल्कुल सही कहा आपने ना, ऐसा ही है, ये भी एक तरह की सिक्योरिटी है। इवन कुछ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर में ऐसी भी हैं जो कि पेरेंट्स को भी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है या इस तरह की चीज़ें, इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं। और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं बड़ी रेयर, इतनी ज़्यादा नहीं है ना, लेकिन है कुछ कि जो कि इवन जो पेरेंट्स हैं, एम्प्लॉय के पेरेंट्स, उनके भी जो मेडिकल इंश्योरेंस है, ये इस तरह की और चीज़ें हैं या ओपीडी वगैरह, उसमें उनको फैसिलिटेट करते हैं ना। तो इस तरह के बहुत सारे पर्क्स अवेलेबल हैं, जो कि ऐसे बहुत सारे रिवॉर्ड अवेलेबल हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनसेशन अवेलेबल हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और कुछ हैं जो एजुकेशन में लोगों को फैसिलिटेट करती हैं। अभी एक फार्मास्यूटिकल फर्म थी, फिरोज सन, उसने जितने भी उनके एम्प्लॉयज थे, उनकी जो स्कूल गोइंग बच्चे थे, उनको वो उन्होंने उनकी फीस स्कूल की पे करना शुरू कर दी, एक लिमिट के अंदर रहते हुए ना। कुछ जगहों पर रिलोकेशन की फैसिलिटी भी है कि लोग रिलोकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जो रिलोकेशन की बात ही नहीं करती, वो ट्रांसफर करवा लेती हैं लोगों की, लोगों को मूव ऑन करा लेती हैं कहीं, लाहौर के बंदे को इस्लामाबाद में रख लेती हैं, लेकिन रिलोकेशन इतनी प्रोवाइड नहीं करती जो कि सफिशेंट हो ना। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फिर लीव फेयर असिस्टेंट है ना, LFA जिसको कहते हैं, जो हमने पढ़ी भी है ना, कि जी पेड टाइम ऑफ, PTO अभी हमने डिस्कस भी किया था। पेड टाइम ऑफ भी लोगों को दिया जाता है कि भाई आप सैलरी भी लें और लीव पे भी जाएं। और लीव फेयर असिस्टेंस भी है कि आप एनुअल लीव पे जाएं
साथ में एक सैलरी लेके जाएं। तो इस तरह के बहुत सारे पर्क्स बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं, और लेकिन काफ़ी जगहों पे नहीं भी है। काफ़ी जगहों पे तो छुट्टियां लेना ही मुश्किल काम होता है, आपको एनुअल लीव ही नहीं मिलती जो कि लिखी हुई होती है ना, वो भी आप की अप्रूव नहीं होती। तो क्योंकि एक मेंटेलिटी है लोगों की जो कि लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं ना। तो इसकी भी जरूरत है कि इसको भी रेक्टिफाई करें। एक लोग कुशादा दिली के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करें, लोगों को मेंटोर करें, लोगों को कोच करें, लोगों को फैसिलिटेट करें। लेकिन फैसिलिटेशन तो वाला माइंड सेट हमारा होता नहीं है बहुत से लोगों का, लोग तंग नजरी से काम करते हैं। और जी जी, उस इस तरह से काम कर रहे थे ना। तो ये ज़रूरत है कि हम अपनी वैल्यूज़ को, अपने कल्चर को इनरिच करें, तब जाके हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। किसी के हाथ में, किसी के अख्तियार में भी कोई चीज़ होती है तो वो आगे डिलीवर नहीं करता, डेलीगेट नहीं करता ना। ये भी एक है, और हम ही लोग नहीं कर रहे होते, कोई और नहीं, हम लोग ही नहीं कर रहे थे ना। राइट, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का जी, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं अंबर नवीद का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उज़मा जिन्होंने इनिशियली एक एरियल व्यू दिया इसका कंपनसेशन एंड बेनिफिट का अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, और फिर हमने बहुत सी चीज़ें इस आज के सेशन में क्लियर की, क्लैरिटी हमने ली। और उसके लिए अब नीड ये है कि हम अपनी रिसर्च को और डेवलप करें और कंपैरेटिव एनालिसिस करें, और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का, मुख्तलिफ सेक्टर्स का, और मुख्तलिफ कंट्रीज का, जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज हमारे इर्द गिर्द के, और इसके ऊपर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हम वो क्या कहते हैं कि अपना नॉलेज इंक्रीज करें। जब हमारा एक सेशन होगा लेबर लॉ के ऊपर, तो फिर हम जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी कंपनसेशन के हवाले से भी बात करेंगे, ठीक है जी। और नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी कंपनसेशन से भी के हवाले से भी बात करेंगे। तो फिर हम और ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कोई भी साथ, कोई भी पार्टिसिपेंट, कोई भी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू को बात करना चाह रहे हो तो वो कर सकते हैं। अपनी कोई भी कंसर्न है वो रेज करना चाह रहे हो, आप ग्रुप में भी बात कर सकते हैं, किसी भी टाइम किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं आप लोगों के साथ आज का जो हमने स्टडी किया है इसका ट्रेनिंग मटेरियल शेयर कर दूंगा, बाद में रिकॉर्डिंग भी मैंने शेयर कर दूंगा, कल वाली भी और आज वाली भी। और उसके बाद फिर हम मज़ीद बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे साथ आज के सेशन में हमारे साथ रहे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, आप लोग सब लोगों को खुदाफिज़ कहते हैं। हैव अ नाइस वीकेंड अहेड। फिर नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एज पर आवर प्रोग्राम एंड एज पर आवर स्केड्यूल, राइट। टेक केयर।